اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد اللہ ہونا چاہیے. او بھئی اللہ کو نکال دیا, اب حقوق نسواں کا نام ہے, حقیقت کچھ اور ہے. اب کہنے کو عورتوں کے حقوق دیے جا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. عیاشیاں کریں فرعون والی اور ہمارا اینڈ ہو موسیٰ والا علیہ السلام. ایسے نہیں ہوتا. اگر کوئی فضیلت والا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے, اور تقوی اللہ جانتا ہے. میں جناب جو مرضی من مانی کرتا رہوں اور میرا اینڈ جو ہے وہ میں کلمہ پڑھ لوں گا, اتنا سمپل نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, ایسے ہی ہے جی. ٹھیک ہے, تو اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ پھر کامیابی کا طریقہ کیا ہے ہمارے خیال میں؟ کامیاب ہونے کا راستہ, بیسٹ وے کیا ہے؟ وہ آپ نے سنا ہوگا, کوٹ سنی ہوگی کہ سکسیس لیوز کلوز. ٹھیک ہے, ہینٹ چھوڑتی ہے, ٹریک چھوڑتی ہے. سکسیس اپنے ٹریک چھوڑتی ہے, اپنے نشانات چھوڑتی ہے. تو ایک اصول ہے, وہ کہتے ہیں لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ اسے بولتے ہیں, کہ اگر آپ بھی وہی کرنا شروع کر دیں جو کامیاب لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی وہی ملنا شروع ہو جائے گا جو کامیاب لوگوں کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں, تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کامیاب ہم کسے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کامیابی کے اعتبار سے اگر کوئی کویشچن ہو کہیں پر, ہو وہیں پہ جو ہے آپ سٹاپ کر سکتے ہیں, رائٹ. تو اگر مجھے آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم کم ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے, اور بات کرنے والی زیادہ ہے, تو پھر میں آپ سے ایکسکیوز کر کے آپ کے کویشچن کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دوں گا. فی الحال آپ جو ہے اینی ٹائم جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی بات پوچھنے والی ہے, آپ آن دی اسپاٹ ہی مجھے اسٹاپ کر سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کے ساتھ ساتھ کویشچن کو بھی آنسر کیا جا سکے. سو موسٹ سکسیزفل پرسن آف ہیومن ریس, اگر ہم بات کرتے ہیں زندگی میں سب سے زیادہ دنیا میں ہسٹری میں, انسانی ہسٹری میں, انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب کون گزرا ہے, پھر ہم اپنے لیے ایک ٹرو سٹینڈرڈ طے کر سکتے ہیں, معیار طے کر سکتے ہیں کہ میں نے کیسا بننا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم میں سے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن کامیابی سے مراد کیا ہے یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے یار پیسہ زیادہ ہونا کامیابی, ٹھیک ہے وہ پیسہ حاصل کر رہا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے نہیں شہرت زیادہ ہونا کامیابی ہے, وہ شہرت کے لیے چلا پیچھے اس کے پڑا ہوا ہے. کوئی اور بندہ وہ کہتا ہے نہیں یار ایک جو ہے نا اقتدار یہ ہونا چاہیے, یہی کامیابی ہے, وہ اقتدار کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو طے کرنا پڑے گا نا کہ ہمارے نزدیک کامیابی ہے کیا. تو کامیابی کے لیے آپ کے خیال میں کامیابی کیا ہے؟ انر سیٹسفیکشن. اوکے, کامیابی ہوگی جی انر سیٹسفیکشن, ایک پوائنٹ آ گیا. اور پیسہ, گڈ. یعنی کہ ایک اور پوائنٹ آ گیا کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے, اور اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں اور دینے کی پوزیشن میں آ سکیں. ایسے ہی ہے جی, میں نے آپ کی بات جو فل ان دی بلینکس ہونے چاہیے میں نے پورے کر دیے تاکہ لوگ جو ہے پریشان نہ ہو جائیں یہ کیا کہہ دیا ہے. اوکے, تو اگر آپ باعزت طریقے سے اچھے طریقے سے کمائی کر کے آپ اپنی ضروریات بھی پوری کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کے بھی کام آنا چاہتے ہیں, اس کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ایک سورس ریسورس کے طور پہ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں, تو اٹ مینس کہ اس اوکے پھر یہ بھی ایکیومولیٹ کرنا بائی لیجیٹیمیٹ مینز. ٹھیک ہے, جائز ذرائع سے حاصل کرنا اور پھر خرچ کرنا, یہ بالکل ٹھیک ہے جی. اور کامیابی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی ادھر سے پلیز, ہماری سسٹرز کی طرف سے. کامیابی کیا ہے؟ 2 پوائنٹس آئے ہیں ابھی تک, ایک کیا ہے سیٹسفیکشن, انر سیٹسفیکشن, اور دوسرا پیسے کے اعتبار سے ایک چیز آئی ہے جی. اور جی, ڈو وی ہیو اینی کمنٹ آن اٹ؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیاب ہونا تو سب نے ہے نا, یہ تو طے ہے نا ہمارے اندر, یہ تو کلیئر کر چکے ہیں. اوکے آگے چلتے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے کامیاب کون ہے, اور اگر ہم اسے وہ جو سب سے کامیاب ہمیں نظر آتا ہے ہم انہیں فالو کرنا شروع کر دیں, تو کیا یہ ایک آسان طریقہ نہیں ہو سکتا کامیابی کے لیے؟ ٹھیک ہے, تو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ایسا کون ہے جنہیں کامیاب مانا گیا. یہ کتاب ہے دی 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History بائی مائیکل ایچ ہارٹ, رائٹ. تو ان کے یہ کومنٹ ہے, تو پلیز آپ میں سے کوئی کومنٹ جو ہے اس کی اردو ٹرانسلیشن پڑھیے گا آپ جی پلیز. انسانی زندگی کے 2 علیحدہ میدان ہیں, ایک ہے مذہب, اخلاق اور روحانیت کے میدان, جبکہ ایک ہے
तमद्दुन, तहजीब, सियासत और माशरत के मैदान, और इन दोनों मैदानों में इंतहाई कामयाब इंसान तारीख़ इंसानी में सिर्फ और सिर्फ एक ही हैं, और वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कौन कह रहा है? ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा, ये गैर मुस्लिम है, और उन्होंने एक ह्यूमन हिस्ट्री पे किताब लिखी है, और उन्होंने कलेक्ट किए हैं कि द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऑफ ऑल द ह्यूमन रेस, यानी कि उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने ज़िंदगी को, जिन्होंने दुनिया को ज़्यादा उन्होंने मुतासिर किया है, राइट, तो उनकी उन्होंने स्टडी की है उस बंदे ने ना। और 100 बंदे जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया दुनिया को, उसने 100 बंदे निकाले हैं, और फिर उनमें से पहले नंबर पे उसे रखा है जिसने उन 100 में से सबसे ज़्यादा दुनिया को मुतासिर करके गया, फिर दूसरे नंबर पर जो बाकी, इस तरह से उसने फिर तरतीब लगाई है। और उस क्रिश्चियन ने ये कमेंट किया है कि जनाब अगर हम देखते हैं दोनों मैदानों में, अगर सेकुलर और रिलीजियस मैटर्स में अगर देखा जाए, तो दोनों मैटर्स में, दोनों मैदानों में आपको ये नज़र आता है कि सबसे टॉप पर कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि ये वो कह रहे हैं जिसने किताब लिखी है, और ये कोई मुस्लिम नहीं है। ये जी एम.एन. रॉय द हिस्टोरियन रोल ऑफ इस्लाम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? जी कौन पढ़ेगा? इधर से कोई पढ़े जी, आप प्लीज जी। बंगाली हिंदू इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कारकुन एम.एन. रॉय, यानी कि कोई शक नहीं कि एक में सॉरी, एक्चुअली ये उनका बताया हुआ है कि ये बंदा एक बड़े लेवल का बंदा था, अपने लेवल में। जी प्लीज आगे। इसमें कोई शक नहीं कि तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया। इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकलाब का क्या मतलब है? कि जिसने सबसे ज़्यादा चेंज देकर गया, पॉजिटिव चेंज, जिसका दुनिया में आप कभी भी उनके असरात को आप नलीफाई नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बंदा है जो कि खुद मुस्लिम नहीं है, वो कह रहा है कि सबसे अजीम तरीन तारीख़ इंसानी की बात अगर हम करते हैं तो अजीम तरीन इनकलाब कौन देकर गए हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, ये जी H.G. वेल्स, इन्होंने किताब लिखी है कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और ये किताब फिर जो है फाइनली नेट से जो है गायब कर दी गई है, यानी कि इनकी स्टेटमेंट्स की वजह से। खैर, तो उनका ज़रा देखते हैं कि जी प्लीज़ ये कौन पढ़ेगा? इधर से कोई हमारी सिस्टर पढ़ेंगी जी प्लीज़, उर्दू। ये हमारे कोई भाई पढ़ेंगे जी प्लीज़। इंसानी है चलिए ये पढ़ रहे हैं हमारे पास, जी प्लीज़। अगरचे इंसानी हुर्रियत, मसावात और अखुवत के वाज तो दुनिया में पहले भी बहुत कहे गए हैं, और हम देखते हैं कि इन चीज़ों के बारे में मसीह नासरी के यहाँ भी बहुत से मवाइज़ हसना मिलते हैं, लेकिन ये तस्लीम किए बगैर चारा नहीं कि ये सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा बिलफिल एक बाज़ाब्ता मुआशरा इन्हीं असूलों पर कायम करके दिखाया। जी जनाब, वो कहते हैं कि बातें तो बड़ी हुई हैं, पहले भी बड़ों ने की हैं, लेकिन अगर उन प्रिंसिपल्स पे बेस करके कोई मुआशरा कायम करके दिखाया तो वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सारी ये जो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स आई हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि जो हमारे ही, यानी कि हम कहते हैं यार ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स थे उनकी स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। ये समझ लें कि एक तरह से दुश्मनी पे उतरे हुए लोगों की स्टेटमेंट्स हैं। और जो कहते हैं असल जो है ना तारीफ़ वो होती है जो दुश्मन करे, वो भी माने कि यार ये बात तो ऐसे ही है, वरना अपने तो तारीफ़ कर ही लेते हैं। तो ये बातें जो हमारे सामने आई, तो अगर हम इस हवाले से देखते हैं तो एहसास होता है कि अगर हम सबसे कामयाब होना चाहते हैं, और दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, ये जो हमारी ज़िंदगी है पहली और आखिरी है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कोई बात नहीं एक बार चांस लेकर देखते हैं, उसके बाद फिर कोई और चांस देखें, दूसरी ज़िंदगी किसी और तरह ट्राई कर लेंगे, तीसरी नहीं, एक ही है जिसमें हमने कुछ करना है। और बाकी जो ज़िंदगी है जो नेक्स्ट मज़ीद आएगी वो कौन सी है? उखरबी। वो उसमें और इसमें मेजर फ़र्क भला क्या है? जहाँ पर एक है कि वो अनलिमिटेड है, एक फ़र्क ये है कि इस ज़िंदगी में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं, प्लस माइनस आपके पास चॉइस है। वहाँ पे चॉइस नहीं है, ये वाली चॉइस कि आप गलत भी कुछ कर दें, और फिर उसके बाद वो है नतीजे वाली ज़िंदगी, और वो जो नतीजा फिर भुगतना है सारी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी है असल में जो कभी ख़त्म नहीं होनी। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम ये देखें कि हम बड़ा सोच समझ के चलें। और मेरी रिक्वेस्ट है ये अपने जो हम इंटेलिजेंट ऑडियंस से कि आप प्लीज़ बातों को बड़ा ध्यान से लीजिए और लॉजिकल
اسے ڈائجسٹ کیجئے. اگر آپ کو کہیں پر لگے کہ یہ بات تھوڑی ایموشنل ہو رہی ہے, یہ تو لاجیکل ہے ہی نہیں, تو آپ کے پاس کھلی چھٹی ہے, آپ جو مرضی کمنٹ کریں, آپ مجھے روک سکتے ہیں کہ سر یہ بات آپ کی لاجیکل ہے, یہ کیسی بات کر رہے ہیں, اس کا تو حقیقت سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. یو کین سے اٹ, رائٹ. تو یہ آپ کے پاس پریویلیج ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ چونکہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کے پاس آزادی ہے, ہم بات کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے جب ہم میں سے کوئی ہمارے بھائی یا بہن کوئی بات کرتی ہیں تو ہم اس کے بعد پھر دیکھ بھی سکتے ہیں نا کہ بات واقعی لاجیکل ہوئی ہے, تو پھر میں معذرت کروں گا آپ کے سامنے کہ میں نے جی لاجیکل بات کی ہے, ویری سوری. تو میری کوشش ہوگی کہ لاجیکل کوئی بات ہمارے سامنے نہ آئے, رائٹ. اور بیسٹ وے آف لائف ہم ڈھونڈ کے یہاں سے جائیں اور ہمیں احساس ہو کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے. جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا میری زندگی اتنی قیمتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں جو مجھے چیز کم از کم چاہیے وہ جنت ہونی چاہیے. یہ میری زندگی اتنی قیمتی ہے کہ میں اسے کسی چھوٹی موٹی چیز کے عوض جو ہے وہ ایسی نہیں ضائع نہیں کر سکتا. مجھے اس کے اگینسٹ کوئی انتہائی قیمتی چیز چاہیے, اور وہ سب سے قیمتی چیز انہیں کیا محسوس ہوئی ہے؟ جنت, جہاں پر سب کچھ ہے, ایوری تھنگ. میری بیٹی ہے, اس کا نام فاطمہ ہے, ان کا چھوٹی ہے ماشاءاللہ, 8 سال تقریباً ایج ہے. تو بات کرتی ہے کہ جنت میں کیا ہوگا. میں نے کہا بیٹا وٹ ایور یو وش, جو آپ چاہیں گی تو وہاں پہ ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ یا اللہ میری ساری فیملی کو یہاں پہ لے آ. ہاؤ کیوٹ, انٹرسٹنگ. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بیٹیوں میں یہ والا ایلیمنٹ زیادہ رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ عبد الرحمن میرا جو بیٹا ہے, اگر ان سے یہ میں پوچھتا کہ بیٹا آپ کیا چاہو گے, تو ان کے پاس کافی لمبی چوڑی لسٹ ہوتی, شاید تو ساری لسٹ میں یہ فیملی کہیں نہ آتی میں بھی. تو یہ فرق ہوتا ہے ویسے بیٹیوں میں اور بیٹوں میں. یہ چیزیں آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل سے بھی دیکھیں گے. تو یہاں تک اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوری سر اٹس ناٹ لاجیکل اور واٹ ایور. میرا آرگومنٹ کیا ہے, میری ریکویسٹ کیا آپ کے سامنے, وہ یہ ہے کہ ہم بیسٹ وے آف لائف کو لے کر جائیں یہاں سے. کچھ بیسٹ ٹپ جو الٹیمیٹ سکسیسفل پرسن ہے پوری ہسٹری میں, ہم وہاں سے سیکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم بڑا سوچ سمجھ کے, جیسے کہتے ہیں نا, بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھیں اور ایک ایک پرنسپل کو سوچ سمجھ کے لیں. اور اسی والے سے جو ہمارے پاس لاسٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ تھی خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے, یعنی کہ جو ایچ جی ویلز نے جو بات کی ہے کنسائز ہسٹری آف ورلڈ میں, انہوں نے کہا کہ اس میں جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس پہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے, تو ہم کیوں نہ خطبہ حجۃ الوداع پر ہی بات کر لیں. اور خطبہ حجۃ الوداع میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کنکلیوڈنگ ریمارکس دے دی ہیں کہ آخری جو باتیں ہیں نا, جسے کہتے ہیں نا جو بات لازمی پہنچ جانی چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر لاجیکل ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بندہ اگر ایک بہت بڑا سمجھدار ہے, دانا ہے, حکمت والا ہے, اور اسے احساس ہو کہ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, میرے جو فالوورز ہیں اور ایون کہ میری اولاد بھی فار ایگزامپل اس میں ہو, اور وہ کہتے ہیں کہ یار میں کنکلیوڈنگ ریمارکس دینے ہیں میں نے کوئی, مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو بڑا سمجھدار بندہ ہے اسے یہ آئیڈیا ہے کہ یہ میری میٹنگ لاسٹ ہوگی فرض کریں, تو اس میں وہ اپنی زندگی کا اہم ترین نقطہ آپ کے سامنے رکھے گا یا کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر کے جائے گا؟ آپ کے خیال میں کیا کرے گا؟ اہم ترین پورا نچوڑ اپنے تجربے کا, اپنی تعلیمات کا, جو جس پہ وہ بلیف رکھتا ہے. این ممکن ہے ہم میں سے عام طور پہ اگر ہم دیکھیں ایک دوسرے کو, ہم شروع میں کچھ اور سوچتے ہیں, آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار جو میں نے سوچا تھا وہ تو ایسا نہیں تھا. پھر ہم اپنے نظریات کو ماڈیفائی کرتے ہیں, پھر ہم چینج بھی کرتے ہیں بعض اوقات. جیسے کسی شخص نے کہا کہ شروع میں سوچا کرتا تھا کہ جیسے وہ پیسے کی بات آئی, میں اس پہ ذرا جسٹ ایک کمنٹ کر دوں کہ جو پیسہ ہے وہی سب کچھ نہیں ہے. اس کے بعد میں مجھے احساس ہوا کہ ہاں پیسہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن پیسہ بہت کچھ ہے. تو اگر آپ جائز ذرائع سے جائز راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. اس نے کہا میں نے جب اپنا کانسیپٹ چینج کیا اس کے بارے میں, میری فائنینشیل پوزیشن چینج ہو گئی. ورنہ میں ہمیشہ امیر لوگوں کو دیکھ کے میں کہتا تھا یار یہ جو ہے نا یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں, یہ تو جاہل ہے, دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں. تو کہتے میرا صرف کانسیپٹ جب چینج ہوا تو کیا ہوا, میری فائنینشیل سٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر ہم یہاں سے اپنے کانسیپچول جو ہے کلیئرٹی لے کر جائیں تو وہ ہمیں بہت ہمارے کام آنے والی ہے انشاءاللہ, رائٹ. تو اس حوالے سے ہم چیزوں کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ کہ خطبہ حجۃ الوداع پہ. جی پلیز. سر آپ نے ڈیفینیشن پوچھی کامیاب کی, تو میرا کوشچن یہ تھا کہ جو لوگ ساتھ لے کر چلتے ہیں کیا وہ کامیاب کی ڈیفینیشن زیادہ بہتر آتی ہے کیا جو کامیاب بن کے دوسروں کو بناتے ہیں؟
ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये है हमारे भाई का कि जो साथ लेकर चलते हैं, कि शुरू से ही साथ लेकर चल रहे हैं, क्या ये ज़्यादा कामयाब हम समझेंगे, या कि जो कामयाब पहले खुद होते हैं और उसके बाद फिर दूसरों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं? ऐसे ही है जी। ये आपके सवाल का जवाब आगे आ रहा है इंशाल्लाह, ठीक है, तफसील से इंशाल्लाह उसमें आएगा। उसकी वजह क्या है कि हम ये देखते हैं, इसमें जो एक पॉइंट सिर्फ मैं आपके सामने एक पॉइंट छोटा सा रख दूँ, वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम लाइफ पढ़ते हैं तो पहले दिन से ही वो सर्व करने के मोड में है, ठीक है ना, वो पहुंचाने के मोड में है और बता रहे हैं आगे। जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बताइए, तो सबसे पहले घर आके बताया किसे? पहली वही हुई है, सबसे पहले किसे बताया आके? घर में कौन थी? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो बताने वाला अमल जो है वो शुरू हो गया। इट मीन्स कि हमें जो है इससे आइडिया, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ये ऐसा नहीं कि पहले कुछ बन जाओ उसके बाद सर्व करो। देखिए आपके पास क्या गारंटी है कि आपके पास बाद में टाइम होगा? आप सोचे कि ठीक है मेरे पास इतना, फॉर एग्जांपल 40 साल 50 साल 60 साल की एज है मेरे पास टोटल, फॉर एग्जांपल, और मैं उसमें सोचता हूँ यार 40 साल जो है मैं डिवोट करता हूँ कुछ बनने में, और उसके बाद 20 साल मैं डिवोट करूंगा लगाने में, तो आपके ख्याल में ये समझदारी वाली अप्रोच है? किसी को गारंटी है कि 40 साल पहले उसे मिलेंगे, उसके बाद उसे फिर 20 साल और मिलेंगे? किसी के पास इस बात की गारंटी है? तो इट मीन्स कि हमारे पास जो प्रिंसिपल्स इंशाल्लाह आएंगे वो डे 1 से चल रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह इसके मुताबिक हम चलते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी खुतबा हिज्जतुल विदा, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अजमत की एक निशानी है कि वो अपने कंक्लूडिंग एक खुतबा जो देकर गए हैं कि लास्ट अपना हज जो है उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया जिंदगी का, और उसमें जो उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया है, और सामने ऑडियंस की तादाद भला कितनी थी? कोई आइडिया है आपको? खुतबा हिज्जतुल विदा पे सामने ऑडियंस कितनी थी, लोग कितने मौजूद थे? तकरीबन 1.25 लाख के करीब, ह्यूज गैदरिंग। और वहां पर जो बातें की हैं उन्होंने, वहां पे हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर हज के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क़याम फरमाया। जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसवा यानी कि अपनी ऊँटनी को लाने का हुक्म दिया, और उस फरमाया कि ऊँटनी तैयार करके फिर हाजिर की गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ़ फरमा हुए, उस पर सवार हुए और बतने वादी में तशरीफ़ फरमा हुए, दरमियान में चले गए वादी के। उसके बाद उन्होंने वो अपना खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें दीन के अहम उमूर बयान कर दिए गए, यानी कि लाइफ के अहम उमूर हैं। बाज़ औक़ात हमारे ज़हन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि दीन का मतलब है नमाज रोज़ा हज ज़कात, इस तरह की बातें आएंगी, शायद दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। दीन एक्चुअली क्या है? हाउ टू लिव योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, दैट लाइफ स्टाइल इज एक्चुअली दीन। और सबसे जैसे मैंने एक लेक्चर में इसका हवाला दिया था, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डिवाइस है, मुझे नहीं पता ये क्या है, आप में फर्ज करें कि आप सब इसे पहली बार देख रहे हैं, तो कौन है, और सारे लोग इसे पहली बार देख रहे हैं, कौन है जो सबसे पहले बताएगा ये क्या कर सकती है और इसका फंक्शन क्या है? कौन है जो इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है सबसे अच्छे तरीके से? जिसने बनाया है। बाद में किसी ने मैकेनिकी इस पर की है, तजुर्बे किए हैं, तो वो तो अपने अंदाज से जितना उसे पता चला वही है, लेकिन जिसने बताया है उसे एक एक चीज का पता है। सिमिलरली मुझे और आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनाया है, और अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हर चीज की हकीकत भी बता दी है कि किस चीज की रियलिटी क्या है, किस चीज को किस तरह से लेना, ठीक है। तो वो फिर जब बंदे के वो जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, तो वो हम देखते हैं कि जब एक बंदा उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, उन्हें हज़म करता है, तो उसका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। जैसे किसी बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि हम बचपन में चश्मे लगाया करते थे मुख्तलिफ कलर्स वाले, नीले पीले हरे इस तरह से ना, ग्रीन वगैरह। उसका होता क्या था, जो लगाते थे ना हर चीज़ उसी रंग की नजर आती थी। ऐसे ही है कि नहीं है? तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चश्मा लगाना है जो आपके बनाने वाले ने आपको दिया है, कि इस तरह से जिंदगी को देखना, तो तुम्हें पता चलेगा किसकी क्या रियलिटी है। वरना अगर आप उस चश्मे को जो अल्लाह ने हमें दिया उसे उतार के देखेंगे, तो हो सकता है आपको कारून बड़ा कामयाब मिले, हो सकता है। जब तक वो नहीं धंसा था जमीन में, सारे कहते थे वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, काश हमें भी ऐसी दौलत मिल जाए। लेकिन बाद में फाइनली क्या हुआ? उसके बाद कहते शुक्र है हम ऐसे नहीं हुए। इसका मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। अगर वो अल्लाह ताला के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक देखते हैं,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसी विश नहीं की। ये सोचने वाली बात है ना। वक़्त के नबी ने कभी ऐसी विश नहीं की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि नमरूद की तो क्या ही बात है, कभी नहीं ना कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा फिरौन की तो क्या ही बात है। बाकी देखने वाले हो सकता है कहते हो। फर्क क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दिए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक चीजों को देख रहे हैं और उन्हें असल में उस पर तरस आ रहा है कि ये बेचारा क्या कर रहा है, और उसे समझा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दिए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक देख रहे हैं। अब उस पे देखते हैं तो उन्हें नजर आ रहा है कि यार ये फिरौन क्या कर रहा है, उसे समझा रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमारे नजदीक जब तक स्टैंडर्ड पक्का नहीं है तब तक हम डोलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। तो फिर आखिरकार हम क्या कहेंगे? चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, बस चलते रहो। फिर हवा कभी इधर की तो कभी उधर की, तो ऐसे करते कराते जिंदगी चली गई। तो आप क्या करेंगे ऐसी जिंदगी के एंड में जब आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है? ठीक है, तो हमारे नजदीक ये चीज जो है बड़ी अहम है कि हम इस बात को समझे कि इट इज अ वेरी कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, कंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट है। और इसमें उन्होंने वो बातें बताई हैं कि अगर आप सिर्फ इन चीजों को पकड़ लें अपनी जिंदगी में और इस दुनियावी जिंदगी में, तो आप हैरान होंगे कि यार इतने क्लास की चीजें जो हैं हमने पता है हमने जिंदगी कहाँ गुजार दी है। इसलिए ये आपका जो है ना एक इंप्रेशन होना चाहिए आपके माइंड में। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम शुरू करते हैं खुतबे की तो किस तरह से इरशाद फरमाया। सबसे पहला काम क्या किया? अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पहली स्टेटमेंट क्या है? तर्जुमा मफहूम हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, वो यकता है, यानी कि वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं है। इतनी स्टेटमेंट को पहले समझिए। सबसे बड़ी दुनिया की हकीकत क्या है? अल्लाह ताला। जो बंदा उस हकीकत को नजरअंदाज करके जिंदगी गुजार रहा है वो बंदा समझे कि हो सकता है दुनिया में वो सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं हासिल कर सका, क्योंकि बहुत बड़ी हकीकत को जुटला के जिंदगी गुजार रहा है। तो हम इस बात को देखें कि आपको आजकल ऐसा नजर आ रहा है कि देखिए बात उस वक्त की है, लेकिन ये मसला आज भी हमारे यहाँ पाया जाता है। आज भी इवन कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो एक फितना बढ़ता जा रहा है वो है एथीज़म। ऐसे ही है जी, मुल्हिदाना सोच। खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता, बताएं कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या, कि हम उस तरह से ट्रेन नहीं हुए कि जिसकी वजह से हम उन्हें कोई जवाब दे सके। जैसे वो था ना एक बंदा था, तो वो घर से, ये फॉरेन कंट्री का एक वाक़या है, वो ना रोज़ाना घर से बाहर निकलता था और बाहर निकल के कहता था कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतना खूबसूरत एक दिन दिया। जो साथ वाला था ना वो खुदा को नहीं मानता था, वो कहता था ओ हो बेवकूफ, कहाँ है खुदा, ये तो साइंटिफिकली हमें ये दिन मिला। तो वो उसकी बात को किसी खाते में नहीं लाता था। वो रोजाना इसी तरह से बाहर निकल के क्या कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे कितना खूबसूरत दिन दिया। और वो दूसरे वाला भी उसी वक्त उठ के क्या कहता था, और छोड़ो यार कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, कोई खुदा नहीं है। एक दिन क्या हुआ, उस साथ वाले ने ना एक शरारत की। उसने किया कि ना कोई फ्रूट वगैरह लेकर ना, फूल वगैरह लेकर बड़े अच्छे तरीके से सजा कर ना उसके दरवाजे के सामने रख के, वो जो खुदा को मानने वाला था, दरवाज़ा नॉक करके वापस आ गया। और उधर आके उसने देखा अब क्या होता है। और सुबह को वक्त जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ना सिर्फ अच्छा दिन दिया बल्कि सुबह इतने खूबसूरत नेमतें भी मुझ तक पहुंचाई। वो साथ ही मुस्कुरा के कहता, और छोड़ो यार ये अल्लाह ने नहीं है मैंने दिया है। वो आगे से कहता, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि दिया तूने पर पैसे शैतान के लगवाए। तो ये है कि देने वाला जो है वो तो अल्लाह ही है ना। हम इस बात को समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली चीज मेरे और आपके सामने रखी है वो क्या है, अल्लाह ताला की हकीकत। मुझे और आपको बनाने वाला कोई है, एक साइंसदान था ना। अच्छा ये कुछ चीजें हैं जो हमने ना, जो मिथ है एक्चुअली, हमने उन्हें सच मान लिया हुआ है। मिसाल के तौर पे, और ये दीनी हलकों में भी बाज़ औक़ात ये गलती आ जाती है। वो क्या है कि साइंस कहती है कि इंसान बंदर से बना है, जबकि ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं
کہ انسان بندر سے بنا ہے, کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں, جبکہ دوسری سائڈ پہ بھی ٹھیک ٹھاک سائنٹسٹ موجود ہیں جو کیا کہتے ہیں, اٹس امپاسبل. جیسے ایک سائنسدان تھا نا, اس نے نئی نئی سائنس پڑھی تو بیچارہ ابھی کچے پکے سے اس کے نظریات تھے, اللہ کو ماننے والے کے پاس آیا, اس نے کہا میری بات سنو یار, آپ بڑے عالم بنے پھرتے ہو, ہم اب یہ بتا سکتے ہیں سائنس کے ذریعے سے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ایون وداؤٹ گاڈ, اللہ کے بغیر بھی یہ کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے یہ ہم بتا سکتے ہیں سائنسی طور پہ. اس نے کہا اچھا بتاؤ پھر. اس نے کہا سب سے پہلے ایک کاسمک ڈسٹ تھی. اس نے کہا ایک منٹ رکو, ڈسٹ بھی اپنی لے کر آؤ. یہ کاسمک ڈسٹ کہاں سے آئی, یہ بھی تو کسی نے بنائی کہ نہیں بنائی. تو یہ کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں اس چیز کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے اس پہ کافی کام کیا, اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو صرف حوالہ دے رہا ہوں, ٹچ کر رہا ہوں کہ یار یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بہت بڑے لیول پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور ان میں ایک ہے ریچرڈ ڈاکنز, اس نے باتیں کی اور میں نے اس پہ کافی وقت لگایا, اور اس نے وہ بندہ بہت زیادہ ایتھیزم کو پروموٹ کرنے والا ہے, اس کی مارکیٹنگ کرنے والا ہے. میں نے اس کی کتابوں کے حوالے سے دیکھا, اس کی ڈیبیٹس میں نے سنی, مجھے احساس ہو گیا. میں پہلے شروع میں دیکھتا تھا بڑا لاجیکل لگتا ہے, لیکن فائنلی آئی گاٹ ٹو نو کہ یار جھوٹ بولتا ہے. اور میں خود صرف ایویں ہی نہیں کہہ رہا آپ سے, میں نے پراپر اسٹڈی کر کے دیکھا کہ کہاں کہاں سے وہ ڈنڈی مار رہا ہے. لیکن جس بندے نے کوئی اس کا ایک آدھ لیکچر سنا ہوگا شاید اسے نہ پتا چلے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, یہ جو ایتھیسٹ حضرات ہیں یہ اگر تو یہ سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہوتے ہیں. اور عام بندہ میرے اور آپ جیسے جسے عام طور پہ پتا نہیں ہوتا وہ ان کے چنگل میں آ جاتا ہے. تو یہ صرف اور صرف ہماری کم علمی ہوتی ہے, ورنہ وہ کوئی زیادہ لاجیکل نہیں ہوتے, وہ زیادہ ان لاجیکل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فیمیل تھی, تو یعنی کہ ایک کپل تھا, بچے تھے ماشاءاللہ ان کے, تو ایسے ایسے وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہوا, جو محترمہ تھیں وہ تو خدا پہ پوری طرح سے یقین رکھتی تھیں, لیکن دوسرے جو شوہر صاحب تھے وہ آہستہ آہستہ ذرا سائنٹسٹ سمجھ کے اپنے آپ کو یہ ماننا شروع ہو گئے کہ انسان بندر سے بنا ہے. وہ جو محترمہ تھیں وہ مانتی تھی بالکل جی انسان جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا, اور جب حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, وہ مانتی تھی اس بات کو. اور بیٹا جو ہے نا ان کا تھوڑا آہستہ آہستہ بڑا ہوا, اور وہ جب تھوڑا سا سائنٹسٹ سوچ اس کے سامنے آئی نا, سائنٹیفک سوچ, اس نے کہا کہ بابا یہ بتائیں کہ انسان کہاں سے آیا. اس نے کہا بیٹا انسان بندر سے بنا ہے. بچہ کنفیوز ہوا تھوڑا سا, پھر ماما کے پاس گیا, کیا کہتے ماما یہ بتائیں کہ انسان کہاں سے آیا. کہ بیٹا انسان جنت سے آیا ہے. اس کے کہ بابا تو کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے, کہ وہ بابا اپنی فیملی کا بتا رہے ہیں. تو بعض اوقات ہمیں کسی اور طریقے سے بھی بات سمجھانی پڑتی ہے, تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس اوکے, ٹھیک ہے. تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا اس حوالے سے, لیکن وہ الحمدللہ. اوکے, سو فرسٹ پوائنٹ از اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ معبود کسے ہم کہتے ہیں, جس کی عبادت کی جائے. عبادت کسے کہتے ہیں, کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جی پلیز, عبادت کسے کہتے ہیں, شکر گزاری کو, ٹھیک ہے شاباش, اور احترام کو, ٹھیک ہے, اور ماننا اقرار کرنا, اطاعت کرنا, ٹھیک ہے, سوری, ٹھیک ہے, جس سے ایک پوائنٹ آیا جس سے سوال کیا جا سکے, سوال مطلب جس سے مانگا جا سکے, بالکل صحیح, میں سمجھ گیا, مانگا جا سکے, رائٹ. جی, غلامی یہ کنہوں نے کہا, آپ نے فرمایا. غلامی کا کانسیپٹ جو ہے یہ اصل میں قرآن پاک میں آتا ہے نا, سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 میں, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں. وہ جو لیعبدون ورڈ ہے نا, دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام دا ورڈ عبد, اور عبد کہتے ہیں غلام کو. اور غلام کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پیروی کرتا ہے, اور غلام فرما بردار, ٹھیک ہے, اور جو آپ کے تابع ہے, آپ نے جو بھی حکم دینا ہے اسے فالو کرنا. غلام اسے کہتے ہیں جو ہر بات کو ماننے پہ پابند ہے, اسے کیا کہتے ہیں, یہ ہے غلام. اور غلام کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. اگر عرب ہم کانٹیکس میں دیکھتے ہیں, غلام کے کوئی حقوق نہیں ہیں. اسے آپ کھانے پینے کو نہ دیں تو یہ نہیں کہہ سکتا دس از مائی رائٹ. غلام کا کوئی حق نہیں.
गुलाम को कत्ल कर दिया जाता अगर उस वक्त कोई मुकदमा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, किसी ने अपनी भेड़ बकरी को ज़िबा कर दिया, कोई बंदा उठ के ये नहीं कह सकता ये तुमने क्या किया, वो कहेगा यार मेरी मुझे नुकसान हुआ, ये फायदा हुआ, हु आर यू, तुम कौन हो मुझसे बात करने वाले। इसी तरह से अगर कोई बंदा अपने गुलाम को कत्ल कर देता था, कोई मुकदमा नहीं, क्योंकि वो उसकी मलकियत में होता था। और वो क्या कहते थे, यार मेरा बंदा है ना, मैंने अपना रिसोर्स ज़ाया किया, हु आर यू। ये कॉन्टेक्स्ट को समझिए, पहले बैकग्राउंड ये है। तो अल्लाह ताला जब फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को, यानी जो अगर वहां पे देखते हैं जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है, इसका मतलब है अपनी ही टोटल ओबीडियंस के लिए। इज इट क्लियर? टोटल ओबीडियंस। तो जब हम ये देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इसका मतलब नहीं कोई भी कि जिसकी इबादत की जा सके, जिसकी टोटल ओबीडियंस की जा सके मगर अल्लाह ताला। बात समझ आ रही है कि टोटल ओबीडियंस अगर किसी की जा सके वो सिर्फ अल्लाह ताला है। और अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी को हुक्म आ जाता है तो फिर क्या है? जब ये स्टेटमेंट है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बता रही है हमें स्टेटमेंट कि अल्लाह के मुकाबले में जिसका भी हुक्म आ गया वो रिजेक्ट हो जाएगा। अल्लाह का हुक्म आपने फॉलो करना, ये है अल्लाह को इलाह मानना। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जहन में जो नजरियात हैं, जो अकायद हैं, वो भी हमारे वैसे परवान चढ़ने चाहिए जैसे मैं बताया गया। और हम देखें कि कुरान पाक को हम समझ के पढ़ने की कोशिश करें ताकि मुझे और आपको पता चले मेरे और आपके बनाने वाले ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया जिंदगी का, जिंदगी की क्या हकीकत है। वरना मुमकिन है कि हम अपने आप को बहुत कामयाब समझते रहें और हमें पता चले कि यार ये जिसे मैं कामयाबी समझता रहा, मकसद हयात मैंने जिसे बनाया हुआ था वो तो कुछ भी नहीं, असल तो कुछ और ही निकला है। तो ऐसे मौके पे फिर क्या करेंगे, राइट? तो इसलिए सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है, आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह होना चाहिए। तो क्या फिर जॉब करनी चाहिए? डेफिनेटली करें, कमाई करें। आपको ये भी तो बताया हुआ है क्या हलाल है क्या हराम है, अल्लाह ने बताया ना। अगर आप हलाल के अंदर रहते हुए आप बेहिसाब कमाते हैं और बेहिसाब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक और बड़ा अहम पॉइंट आ जाता है, आगे चल के इंशाल्लाह उसे हम खोलेंगे। इंसानियत, हम कहते हैं यार इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, ऐसा है ना। तो ये बताएं कि अगर एक बंदा इंसानियत की खिदमत में लग जाए मगर वो अल्लाह ताला को इग्नोर कर जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंसानियत को बनाने वाला कौन है? इंसानियत के साथ किस तरह चला जाए ये भी अल्लाह ने बताया। अल्लाह से ज्यादा किसी को मोहब्बत नहीं है इंसानों से, ये पता है ना हमें। तो जब अल्लाह में कोई बात कह रहा है कि इस चीज को इस तरह से करो इंसानों के साथ, इसका मतलब अल्लाह को पता है कि किसका वाकई फायदा होगा और किसका फायदे के चक्कर में नुकसान हो जाएगा। जैसे बाजू का आपने वो स्टेटमेंट सुनी हुई है, वो कहते हैं जी कि अगर आपने किसी को एक दिन के लिए खाना देना है तो आप उसे मछली दे दें, और अगर आप उसे सारी जिंदगी का खाना देना चाहते हैं तो उसे मछली पकड़ना सिखा दें। समझ आ रही है? वो जो बंदा कहता है यार मैंने भूखों को खाना खिलाना है, भूखों को खाना खिलाना है, भूखों को खाना खिलाना है, लेकिन वो एबिलिटी पे कोई काम नहीं कर रहा। अब आप समझ सकते हैं ना, दिखने में हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वो एबिलिटी पे काम कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा तो हम ये समझेंगे कि शायद वो पूरे पोटेंशियल को नहीं रीच कर रहा। इज इट क्लियर? तो अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। यहां पर गड़बड़ होगी तो सारा काम खराब हो गया। आप 100 मंजिला इमारत बना सकते हैं लेकिन अगर फाउंडेशन में गड़बड़ है फिर नहीं वो कायम रहेगी। ऐसे ही है, अगर फाउंडेशन दुरुस्त है, मजबूत है, फर्म है, फिर क्या होगा? फिर जनाब आप 100 मंजिला भी बना सकते हैं तो कुछ नहीं होगा, वो कायम रहेगी। ऐसी आज है ना, हमें नजर आती हैं बड़ी बड़ी इमारतें क़यामत की निशानियों में से। क्या है ऐसी? मसलन माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी ओके, बुर्ज खलीफा, ओके ठीक है। और ठीक है माशाअल्लाह, बहुत सारे टावर हैं, ओके ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है देन इज ऑल गुड। तो ये फाउंडेशनल बात क्या है कि भाई अल्लाह के मुताबिक चलना, आगे फिर जो भी करना है आपको रास्ते नजर आते चले जाएंगे। लेकिन जब आपने अल्लाह के कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया फिर समझें कि जो भी आप करेंगे वो फिर गड़बड़ी होगा, गलत ही होगा, ठीक है। फिर कंफ्यूजन बेस्ड
हमारे स्टेप्स होंगे। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, याद रखिएगा, ये उनकी बात हम पढ़ रहे हैं जो दुनिया में सबसे कामयाब गुजरे हैं। उन्होंने अपनी बात में सबसे पहले अल्लाह को रखा है। तो अगर हमने कामयाब होना है तो हमने भी अपनी बात में किसे रखना है? सबसे पहले अल्लाह को रखना है। और ये जो शिर्क के बारे में खास तौर पे वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। शिर्क का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ये बुत परस्ती जो है ना, ये एक टाइप ऑफ शिर्क है। दिस इज नॉट द ओनली शिर्क। ठीक है, कुरान पाक में आता है सूरह फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिसका मफहूम है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया है? हम जो वर्ड यूज करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, हम कहते हैं ना, वहां पर यही वर्ड यूज हुआ है कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया है। अब मुझे बताएं कि क्या कभी आपने किसी शख्स को देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को सजदे करता हो? इसका फिर क्या मतलब है? मसलन वो क्या है, एक पॉइंट आया, उसका गुलाम बन गया, अपनी ख्वाहिश नफ्स का गुलाम बन गया। इसका मतलब क्या है? जो जी चाहता है वो करता है। उसे लगता है ये ठीक है वो करता है, उसे लगता है वो ठीक है वो करता है। ये नहीं देखता कि इनके बारे में ऊपर से क्या ऑर्डर आया है। अल्लाह को इक्वेशन में से साइड पे करके खुद ही डिसाइड कर रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। ये अब क्या हुआ है? अब अपनी ख्वाहिश नफ्स को क्या कर लिया उसने? अल्लाह का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा शिर्क की मुख्तलिफ इकसाम आपको नजर आएंगी। ये अगर हम देखें ना कि किस तरह से दूसरी चीज़ों की इबादत शुरू हुई हैं, तो वो आपको पता चलेगा कि स्पेशली हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो वहां पर उन्होंने देखा कि जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हैबतनाक है उन्होंने उसे भी माबूद बना लिया, जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा है उसे भी माबूद बना लिया, जो बड़ी मैसिव है उसे भी माबूद बना लिया। समंदर को देखा, ओ इतना ह्यूज, इसका तो दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता, इसकी भी इबादत शुरू हो गई। आग जो है इसमें यार क्या असर है, जला के राख कर देती, उसकी भी इबादत शुरू हो गई। नाग की भी इबादत शुरू हो गई। पैसा, लक्ष्मी, सुना होगा कि नहीं, लक्ष्मी देवी उसकी भी इबादत शुरू होगी। तो क्या जिस चीज में उन्हें लगा कि ये ठीक है ठीक है ठीक है, उसकी इबादत शुरू होगी और फिर उससे डरना भी शुरू हो गए। तो किसी ने बड़ी प्यारी बात की, उसे वो एक हिस्ट्री की बात है, उन्होंने कहा कि हुआ क्या, ये समंदर को देख के घबरा गए, हुए समंदर इतना ह्यूज, इसकी इबादत करें। उधर से अंग्रेज देख के नहीं घबराए, वो वहीं से होके आए और उस पर कब्जा कर लिया, वो नहीं डरे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या बताया कि हम इस बात को समझ के चलें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही है। बाकी सारी ये चीज़ें जो आपने क्रिएशन है ना, ये एक ना अल्लाह का बंदा था माशाल्लाह, उनका शागिर्द था। उन्होंने कहा उस्ताद जी वो कैसा मौका होगा और कैसा लम्हा होगा जब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होगा और कोई चीज़ ना होगी, वो कैसा लम्हा होता होगा। क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा से हमेशा के लिए ना। तो वो जो अल्लाह ताला के बंदे थे उन्होंने कहा कि पुत्र अब भी तो यही है, अब भी तो हकीकत सिर्फ अल्लाह ही की है, बाकी है क्या। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा मर्जी उसकी चलती है। बंदा कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है, अल्लाह वो करवा लेता है जो उसने करना होता है, मर्जी वो अपनी चला लेता है। जिसे बचाना है वो दुश्मन के हाथों में भी बचा लेता है, और जिसे मारना है वो सारी तहों के अंदर भी हिफाजती हिसार में भी वो मरवा देता है। ये है वाकई अल्लाह। तो इसलिए हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जिसे बचाना होता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचा ही दिया ना फिरौन से, और फिरौन ने पूरा जोर लगाया था कि नहीं था लगाया। तो इसी असल कॉन्सेप्ट जो है, इस बात पे हम आए और कोई शरीक नहीं है, उसके साथ किसी को मिलाए ना। अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को बना लीजिए। फिर आप जॉब करें, फिर आप बिजनेस करें, फिर आप शादी ब्याह वाले मामलात करें, उसमें भी वो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, अकायद जो अल्लाह ने दिए उन्हें फॉलो करके चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए हम 5 वक्त के नमाजी हैं और हम तहज्जुद गुजार हैं, लेकिन हमारी शादी में और हिंदुओं की शादी में फर्क ही कोई ना हो। फिर तो ये भुलेखा है जो हमने खुद को डाला हुआ है। वो क्या है कि ना सजदा हम अल्लाह को ही करते हैं, लेकिन मानते पता नहीं किस किस की हैं। ये जहेज कहां से आ गया, सोचने वाली बात है कि नहीं है। इस्लाम ने तो इंट्रोड्यूस जो असल में चीज करवाई है वो तो हक महर था। हक महर क्या होता है? जो शोहर पे ऑब्लिगेशन होती है कि उसने बीवी को देना ही देना है, जी बिल्कुल। उसका निकाह जो है, और जहेज क्या होता है? जो ये कुछ नहीं होता,
याद रखना ये हमने खुद से बनाया, ये कुछ नहीं होता। इसे ना एक्सप्लेन करें, ये वो जो कहानियां हमने सुनी है ये वो होता है, ये जो ड्रामेबाजी है ये वो होता है। यहां तक के शायद आपको थोड़ा सा हौसले से सुनिएगा, एक एक्सप्लेनेशन जो है इसकी ये आई कि हिंदुओं में जो कूड़ा उठाने के लिए आता है उसे जो वो कूड़ा उठाने के पैसे देते हैं उसे वो जहेज कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, उनके नजदीक जो बेटी है वो बोझ है, इन्हू मगरों लाओ, तो उसे मगरों लाने के लिए क्या करते हैं, जो पैसा देते हैं उसे क्या कहते हैं, जहेज है। अब सोचे जरा, हमें तो ये कहा गया कि औरत जो है वो एक मलका की हैसियत रखती है। आप सोचिए ना जरा, इस्लाम में अगर आपने रोल देखना है फीमेल का, मां के पांव के नीचे जन्नत है, ऐसी है कि नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए सबसे ज्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन है? फरमाया तुम्हारी मां। अर्ज किया उसके बाद? फरमाया फिर तुम्हारी मां। अर्ज किया उसके बाद? फरमाया फिर तुम्हारी मां। अर्ज किया उसके बाद? फरमाया फिर तुम्हारा बाप। इतना रोल है इस्लाम में औरत का, फीमेल का। और बेटियों के बारे में क्या आया कि जिसकी 3 बेटियां हुई उसके और उसने अच्छी तरबियत की तो वो उनके लिए आग के लिए ओट बन जाएंगी, वो उसकी वजह से जहन्नम में जाने से बच जाएगा, बेटियों की वजह से। और 2 के बारे में भी यही हुक्म आता है। कैन यू इमेजिन कि ये प्रोटोकॉल है जो फीमेल को दिया गया है। ये किसने दिया है? वापस आइए, अल्लाह ने दिया है। हम अल्लाह को अपनी जिंदगी में से निकाल के खुद हुकूक निस्वा में चल पड़े। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओ भाई, अल्लाह को निकाल दिया, अब हुकूक निस्वा का नाम है, हकीकत कुछ और है। ठीक है ना? अब कहने को औरतों के हुकूक दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या किया जा रहा है? उनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। कहने को आजादी है, हकीकत में गुलामी में जकड़ा जा रहा है। आप जाएं वेस्ट में देखें, वहां पे जनाब वो कहते हैं, अब वहां पे देखें, जब अल्लाह को इक्वेशन में से आउट करें, नतीजा सुन लीजिए क्या होता है। शौहर अपनी बीवी से कहता है, देखो मेरी बात सुनो, ये एक घर है, इसमें मैंने भी रहना है, तुमने भी रहना है, और ये घर है रेंटल है, तो इसकी कमाई तुम भी तो रह रही हो ना, तो आधी कमाई तुम करके इसका रेंट दोगी और आधा रेंट मैं दूंगा। ये है जो हुकूक दे रहे हैं औरतों को। और मजीद आगे चलिए, वो मजीद आगे क्या कहते हैं जनाब, माशाल्लाह अल्लाह ताला बच्चे दे देते हैं। उसके बाद बेगम साहबा ने 1 घंटा पहले उठना है और निकलना है, क्योंकि पहले उन्होंने बच्चों को कहीं छोड़ना है, बेबी सिटर के पास या स्कूल में छोड़ना है, उसके बाद अपनी जॉब पे जाना है। और ये जो शौहर साहब हैं, ये लत रख के टीवी देख रहे हैं, इजी फील करें, एंजॉय कर रहे हैं, और सुकून से 1 घंटे बाद निकलेंगे, और उसके बाद वापस भी उस बेचारी ने 1 घंटा लेट पहुंचना है। ये कौन है जिसे उन्होंने बड़े हुकूक दिए हैं? ये वो है। तो आप सोचे, इस्लाम कहते हैं खबरदार, औरत को तुम फोर्स नहीं कर सकते कमाई के लिए। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ये किसने कहा है? ये अल्लाह ने कहा है। जब अल्लाह को इक्वेशन में से आउट करेंगे, फिर सारी चीजें जो है आपके लिए गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, जो अल्लाह ने मुझे और आपको हुकूक दिए हैं वो किसी ने नहीं दिए। ठीक है? इस्लाम कहता है खबरदार फोर्स नहीं करना, लेकिन अगर वो करना चाहे तो उसे इजाजत है। वो बिजनेस कर सकती है, वो जॉब कर सकती है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकती है, इजाजत है, विद इन द सर्कमस्टेंसेस। वो कौन सी जो आप बताई गई हैं, जो उसके हवाले से कंडीशंस वगैरह, उसमें रह के बड़ा बड़ा कमा सकती हैं, और बड़ा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम खवातीन कमा रही हैं, और कहीं पे मना नहीं है। आप सोचें, सबसे पहला जो इस्लाम की सपोर्ट के लिए माल किसका काम आया? हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, शी वाज एन एंटरप्रेन्योर। और इंटरेस्टिंग बात जो है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके माल को अपना माल नहीं समझा। ये है जो बात समझने वाली है। हम तो समझते हैं कि जनाब ये जो है ना, ये जो जहेज भी लेके आएगी और जहां से भी आएगा ये मेरे अकाउंट में जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा जो उसका माल है वो उसका माल है। और अगली बात, जो शौहर का माल है असल में वो भी बीवी का माल है। खतरनाक तो नहीं होगी बात ज्यादा? किस तरह से? वो जायज जरूरियात के लिए भाई उसे शौहर की जिम्मेदारी है, उसने खर्च करना ही करना है, वो उसे मांग सकती है, उससे ले सकती है, इवन कि उसके लिए जाके वो स्यू कर सकती है
کہ جب شادی تو کی ہے, نکاح تو کیا, میرے خرچے پورے نہیں کر رہا, اسلامی سسٹم میں اس کا خرچہ لگایا جائے گا. کوئی شوہر جا کے یہ نہیں کہہ سکتا دیکھیں جی اس نے میرے ساتھ شادی کی ہے اور میرے اخراجات یہ نہیں اٹھا رہی, اور جج صاحب کہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ محترمہ جو ہے کمائی کر رہے ہیں, یہ اتنا آپ پہ خرچ کیا کریں. ایسا کبھی سنا کیس؟ اسلام میں نہیں سنیں گے, باہر بڑے سنیں گے. از اٹ کلیئر؟ اس بات کو کانسیپچولی انڈرسٹینڈ کریں. یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کو جب ہم لے آتے ہیں سسٹم میں تو پھر یہ صورتحال بن جاتی ہے. جب اللہ کو سائڈ پہ کر کے ہم اپنے مقاصد طے کر لیتے ہیں, ہم خود طے کرتے ہیں حقوق کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں, کون کیا کرے گا میں طے کروں گا, تو پھر یہی کچھ ہوگا, ایسے پھر چند چڑھیں گے. اور اس میں مزید آگے چلیے, فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اچھا پہلے والے اس سے پہ نا کافی ساری چیزیں تھیں جو میں آپ سے اور بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اینی ویز ٹائم کو بھی دیکھنا, میرے پاس ٹائم شارٹ ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, کیا اللہ وعدے پورے کرتا ہے. اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اگر اللہ نے آپ سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ پورا نہیں ہونا ہے. ایسے ہی ہے نا, ہمارا مسئلہ اور ہے. ہمیں اچھا رازق کون ہے؟ اور یہ جو ریڑھی میں بھی بیٹھ کے, ریڑھی پہ بیٹھ کے, ٹھیلے پہ بیٹھ کے وہ بھی کرپشن کرے, اسے بھی جا کے پوچھنا رازق کون ہے, کیا کہے گا؟ اللہ. اور ذرا آپ اسے کہنا بھلا یہ 2 کلو ذرا سیب دے دو, تو پھر ماشاءاللہ گھر جا کے ذرا کھولنا اور ان میں سے دیکھیے گا کتنے ٹھیک نکلتے ہیں اور کتنے. اور اگر آپ شادی شدہ ہے تو میرا مشورہ ہے کہ گھر جا کے پھر یہ ٹرائی نہ ہی کیجیے گا. پھر بیگم صاحب آپ کو کہیں گے میں کیا سینا تو آج تک فروٹ خریدنا نہیں آیا, اگر اس میں سے عجیب و غریب نکلیں گے. یہ کون ہے یہ جو 2 نمبریاں کر رہے ہیں؟ اسی سے پوچھے, ہو سکتا ہے اسے یہ حدیث بھی یاد ہو, ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, جو میں ملاوٹ میں کروں گا تو اسے پکڑ کے دکھائے کوئی. لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ پاؤڈر لے جائیے, 500 کا پاؤڈر ہے, اس سے 10 کلو دودھ خالص تیار ہوتا ہے. 500 کا پاؤڈر ہے اور 10 کلو خالص دودھ تیار ہوتا ہے. اور اگر کوئی لیبارٹری سے پکڑ جائے تو ہمارا نام بدل دیجئے گا. یہ کون ہے؟ پکے جنتی. یہ وہ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ادھر سے آنکھ بند ہونی ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنا ہے ہاتھ اور لے جانا, آجا میرا امتی, چلو اسے جنت میں داخلہ کروا دیں. یہ سارے وہم میں مبتلا ہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, اور اللہ جو بھی وعدے کیے وہ سارے پیش اللہ نے پورے کیے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے راستے پر چلو گے تو میں تمہارے لیے آسانیاں بانٹ دوں گا, تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کا وعدہ ہے اگر مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کا وعدہ ہے اگر شکر کرو گے میں اور دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے اگر رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے تو میں تمہارے مال میں برکت ڈال دوں گا. رشتہ داروں پہ, یس, حدیث کا مفہوم ہے صلہ رحمی کرنے کے لیے. ہمیں لگتا ہے سب سے بڑے میرے دشمن ہی رشتہ دار ہیں. وہ کیا آپ نے سنا ہوا, یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں میں نکالی ہوئی ہیں. تانے تانے پہ لکھا ہے رشتہ داروں کا نام. اب یہ کون ہے؟ یہ مومنین ہیں جنہیں پکا پتا ہے کہ یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رج کے عشق کرنے والے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر سچ بولنا قبول نہیں, ملاوٹ چھوڑ دینا قبول نہیں. اس لیے رازق کون ہے؟ او بھائی جس نے وعدہ کیا ہوا نا اس نے وعدہ پورا کرنا ہے. میں نے اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے تو اللہ نے اپنا پورا کرنا ہے. ویری سمپل. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم اپنا وعدہ کرو پورا اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو یہ ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اور وہ کیا کہ اس نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی, اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کر دیا. جتنے بھی لوگ مخالفین آئے تھے مقابلے میں کہ ہم نے اس چراغ کو گل کر دینا ہے, ہم نے اسے بجھا دینا ہے, اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, ایسی باتیں کرنے والے آئے تھے, اللہ نے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں چھوڑا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت. جو اللہ کے ساتھ حق ادا کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ حق ادا کرتا ہے. جو اللہ کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو کسی کھاتے میں نہیں لانا, تو اللہ کو پتہ ہے میں نے کس طرح سے اسے پکڑنا ہے. اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. اللہ کو آپ کے جذبات کا بھی پتہ ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف کہاں سے ہوتی ہے. جب اللہ پکڑتا ہے نا تو وہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے,
वेरी डेंजरस एंड वेरी सेंसिटिव मैटर। एक पुलिस वाले साहब थे, उन्होंने वाकया बताया। उन्होंने कहा जी कि हमें मुखबरी हो गई कि जनाब एक जगह से ना कोई बंदा चर्स बेचता है। हम वहाँ पे गए और हमने उसे वहाँ से पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा, और वहीं पर उसके घर के बाहर हमने उसे इंसाफ देना शुरू कर दिया, वहीं पर लिटा लिया। और आगे से एक साहब ने आगे से उसकी बाजुओं से पकड़ लिया, दूसरे ने टांगों से पकड़ लिया और गाड़ी में से बड़ा छितर निकाल लिया और फिर सुबहान अल्लाह ठा करके मारा। एक लगा, दो लगे, और उसके बाद जनाब वो कहते हमने नोट किया ऊपर से ना एक बंदा वीडियो बना रहा था, कहता हमारे अफसर ने कहा यार इसे छोड़ो, उसे लेके आओ। कहता हम फिर चीते थे, हम फौरी तौर पे गए और जाके उसे पकड़ के ले आए। कहता उसने कहा इसे साइड पे कर दो जो पहले है, इसे यहां पे बिछा लो। हमने उसे बिछा लिया, हुक्म की तामील होगी। फिर कहता जब पहला छितर लगाना उसे, वो कहता अब्बू जी। फिर दूसरा छितर लगा, कहता हाय ओए अब्बू। तीसरा छितर अब्बू। कहता हमने नोट किया दूर ना एक बुजुर्ग थे बाबा जी, उन्हें देख देख के मुस्कुरा रहे थे। कोई बंदा ना, लोग जो है ना मोहल्लेदार कहते यार तू ही जाके गल कर, तू छड़ा इन्हें जाके, वो नहीं आ रहे। खैर अगले दिन क्या हुआ, कहता उन दोनों बंदों को पकड़ के ले गए थाने में, हमने वहां पे बंद कर दिया। और वहां पर जो है ना वो बुजुर्ग आ गए मिठाई का डब्बा लेके। तो वो जनाब सबको कहा यार मिठाई खाओ। हमने कहा यार किस बात की मिठाई? उसने कहा यार छोड़ो बस खाओ आप। हमने कहा बताओ तो सही यार, पहले खाओ आप। हमने खा ली सबने मिठाई, अब बताओ खैरियत है? कहता यार वो जिसे आपने बाद में छितर मारे थे ना, जो कहता था अब्बू जी, वो मेरा बेटा है। कहता इकलौता है, एडा बड़ा हो गया, उन्हें आज तक मैंने अब्बू जी नहीं किया। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने उसे अब्बू जी कहलवा दिया। कहता ये जो डब्बा है ना, मैं ऐसा एक और भी ला सकता हूं, अगर आप उसे एक बार फिर निकाल ले और एक बार फिर से उसकी छतरोल करें ताकि वो कहे क्या अब्बू जी। तो याद रखना ये जो अब्बू जी खुश हो रहे थे ना, अल्लाह ना बंदे से अब्बू जी से ज्यादा प्यार करता है। तो अगर हम अल्लाह ताला को ना याद करेंगे, हम अल्लाह को भुलाए रखेंगे, तो फिर अल्लाह को भी पता है कि मैंने इसे कब कैसे काबू करना है कि इसे याद आए कि अल्लाह जी हुण तुसी ही बचाना है, या अल्लाह आपने ही बचाना है। तो बेहतर है कि उस वक्त के आने से पहले 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 कह लें कि या अल्लाह हमें बचा ले, बजाय इसके कि कुछ खा पी के कुछ नीले पीले हो के फिर पुकारें अल्लाह को। हदीस का मफहूम है ना, जो खुशहाली में अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसे उसकी तंगी में याद रखता है। अगर आप चाहते हैं आपके दिल में बात आए और अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, आइडिया उसके लिए क्या है जबरदस्त, आप अपनी आसूदगी में खुशहाली में अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को पुकारते रहे, ये है। तो अल्लाह ताला ने सारी बातिल कुव्वतों को ज़ेर किया है और फरमाया कि लोगों मेरी बात समझो, सुनो, मैं नहीं समझता कि आइंदा कभी हम इस तरह किसी मजलिस में इकट्ठे हो सकेंगे। इस बात का क्या मतलब था कि आखिरी मौका है। इसका मतलब है कि ये बड़ी अहम बात है, हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, कहीं ऐसा ना हो हम इसे ओवरलुक कर जाएं इन बातों को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे फरमाया कि बात सुनो, मैं नहीं समझता कि दोबारा कभी ये मौका आएगा। इसका मतलब है कि आप जो बात करने लगा इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट है। इंसानों, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हुजरात में जाके देखिए, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, आयत का मफहूम है, ए इंसानों हमने तुम सबको एक ही मर्द औरत से पैदा किया है और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया कि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज्यादा इज्जत और करामत वाला अल्लाह की नजर में वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। यह है जी कॉन्सेप्ट, अजमत किसकी है? जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। ठीक है जी, दिखने में आपको लगे कि वो जी वाह जी फलां चौधरी साहब की तो क्या ही बात है, फलां जो है जो विरक साहब हैं, वो मियाँ साहब हैं, वो डार साहब हैं, वो फलां साहब हैं। भाई याद रखना एक ही मर्द और औरत से पैदा किया, इस बात का क्या मतलब है? 5 भाई हो ना, वालिदैन वही हैं, उनमें से एक के चलो जी मैं आइंदा से चाहूँगा कि मुझे जट साहब कहा जाए, दूसरा के मैं चाहता हूँ जी मुझे मियाँ साहब कहा जाए, तीसरा कहता है मैं चाहता हूँ जी कि मुझे जनाब डार साहब कहा जाए। ठीक है, और एक कुछ और क्या देता है, एक कहता है यार मेरे पास कुछ बचा नहीं मैं क्या कहूँ, कहते हैं तुम्हें हम मोची कह लिया करेंगे। मुझे आप ये बताएं वैसे क्या ये नाम रखने से
कोई उनके स्टेटस में रियलिटी में फ़र्क है? ओ भाई वालिदैन तो वही हैं। इसी तरह से मेरे और आपके, हम सब के वालिदैन तो एक हैं असल में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, ऐसे ही है ना। तो जब सारे उन्हीं की औलाद हैं तो बीइंग ह्यूमन कैसे कोई दूसरे से बेहतर हो सकता है? आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं उससे बेहतर हूं या वो मुझसे कमतर है, चाहे वो मोची है, चाहे वो जो भी है। याद रखना, हो सकता है कि अल्लाह की नज़र में वो ज्यादा ऊंचा हो आपसे, क्योंकि वो अल्लाह से ज्यादा डरता है। तो ये, और अगली बात, ये जो अल्लाह से डरने की बात है, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैं अल्लाह से ज्यादा डरता हूं मैं इसलिए आपसे ज्यादा बेहतर हूं, मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि असल में अल्लाह जानता है कि कौन कितना डरता है। हो सकता है मैं रियाकारी में पड़ा हूं, हो सकता है मैं दिखलावे के चक्कर में पड़ा हूं, और ये अल्लाह जानता है। हो सकता है मैं भी उतना ना जानता हूं जितना मुझे अल्लाह जानता है। तो इसलिए याद रखिएगा, आप कभी भी ह्यूमन लेवल पे अगर आप देखें, आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं या फलां से बेहतर है। अगर कोई चीज है, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है, वो एक ही है, वो है अल्लाह से डरना। जो अल्लाह की नाफरमानी से बच बच के जिंदगी गुजार रहा है, और ये उसका और अल्लाह, उसके दिल का और अल्लाह का मामला है। जो अल्लाह से जितना ज्यादा कोई बंदा गॉड कॉन्शियस है, वो उतना ही अल्लाह की नजर में ज्यादा ऊंचा है। ठीक है। ना किसी अरब को अजमी पर कोई फौकियत हासिल है, ना किसी अजमी को किसी अरब पर, ना काला गोरे से अफजल है, ना गोरा काले से। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का कोई मियार है तो वो क्या है? तकवा। यस, व्हाट इज तकवा? दैट इज बीइंग गॉड कॉन्शियस। हर मामले में ये देखें यार, ये काम करने से अल्लाह खुश होगा कि नाराज होगा। जहां से आपको यकीन हो अल्लाह राजी होगा वो कीजिए, अल्लाह के करीब हो। असल कामयाबी अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दी है। क्या कामयाबी है? क्या करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, क्या करोगे तो तबाही आपके हिस्से में आएगी। अल्लाह ताला को एक एक चीज़ का बड़े अच्छी तरह से पता है। तो याद रखिएगा कि फरमाया ना कि किसी को, अच्छा अरब का नाम लेने में इसमें खास एक लॉजिक है। अरब लोग अपने आप को दूसरों से अफजल समझते थे, वो दूसरों को किसी खाते में नहीं गिनते थे। और इवन कि आज भी आपको एक हद तक ये चीज़ मिलेगी, वो अपने आप को आज भी किसी ना किसी सेंस में अजमी यानी कि दूसरे लोगों से बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम अरब हैं। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे बराबर हैं। अगर कोई फजीलत वाला है तो वो तकवे की बुनियाद पर है, और तकवा अल्लाह जानता है। आप नहीं कह सकते कि फलां ज्यादा मुत्तकी है, वो ज्यादा ऊंचा, या ये ऊंचा, नहीं। ये अल्लाह का और उसका मामला है। आप उसे इंसान होने की हैसियत से उसे प्रोटोकॉल दें, उसे इज्जत दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका फ़ायदा करने की कोशिश करें, इंसान होने की नीयत से आप उसका ख्याल रखें, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन याद रखिएगा कि आप सब बराबर हैं, और ये भी ना समझिएगा कि हम किसी से कमतर हैं। नो, यू आर ग्रेट। अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है। कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को इज्जत दी है, अल्लाह ने दी है। तो जिस इंसान को अल्लाह ने इज्जत दी है, अगर आप उसकी इंसल्ट करेंगे तो आप असल में किसके साथ मामला खराब कर रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट है। जिसे अल्लाह ने इज्जत दी हो आप उसकी इज्जत छीनने की कोशिश करें, जिसे अल्लाह ने इज्जत वाला बनाया आप उसे जलील करने की कोशिश करें, तो आप असल में उसे नहीं कर रहे, आप काम खराब कहीं और कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला को आजिज़ी वाले बंदे बड़े पसंद हैं, जो आजिज़ रहते हैं। इंसान सारे की सारे ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम इससे सिवा क्या है कि वो मिट्टी से बनाए गए। इसका मतलब क्या है? वो भाई जब हमारा जो रॉ मटेरियल है असल में वो तो मिट्टी है। तो किसी ने कहा ना, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थले। तो बात तो यही है कि हम खुद मिट्टी से हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के बाप हैं वो भी मिट्टी से थे, तो फिर फजीलत कौन सी रह गई? क्या किसी को ज्यादा अच्छी मिट्टी लगी हुई है, किसी को कमतर लगी हुई है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कोई बंदा अपने आप को जनाब चौधरी साहब कहलवा के और जनाब बड़ा खुश होता हो कि अल्लाह ताला की नज़र में वो बिल्कुल फारग हो, तो कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाज़ औक़ात हम समझते हैं, जैसे वो था ना एक जगह पे खुतबा जुम्मा का मौका बना ना, वो कहते हैं कि एक जगह पे खुतबे का मौका बना, तो जहाँ वहाँ पे ना कोई एक बंदा आ गया और ठीक ठाक सूटेड बूटेड, यानी कि सूटेड बूटेड से मुराद क्या है कि वही
कपड़े जो हैं वो कलफ लगे हुए हैं और जहाँ पगड़ी पहनी हुई है, और सारे देख के ना एकदम से ही मस्ट बी समथिंग, ये कोई आलम आ गया बहुत बड़ा। तो जिसने खुतबा देना था ना वो कहता कि हजरत जी आज तो खुतबा आप ही देंगे क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया यार ये बड़ा आलम है। तो वो कहता ठीक है, और वो सबके सामने गया और जाके कहता आपको पता है आज मैं आपसे क्या बात करने लगा हूं? सब ने कहा नहीं। उसने कहा फिर आपसे बात करने का फायदा? वो ये क्या कि उतर गया और चला गया। अगले जुमे फिर आ गया, कहा जी ये जो बंदा है ना है आलम है, इसकी देखिए वज़ाकता देखिए इसकी क्या बात है यार, बल्ले बल्ले, इससे हमने आज तो हमने इसे नहीं जाने देना। हजरत जी आप खुतबा देंगे? उसने कहा ठीक है। फिर आया सामने, उसने कहा आज आपको पता है मैं आपसे क्या बात करने लगा हूं? सब ने कहा हाँ हमें पता है। उसने कहा जब आपको पहले ही पता है तो बात करने का फायदा? तीसरी बार वो फिर आ गया, उन्हें प्लान किया इस बार नहीं जाने देना, इस बार जो है ना हमने ट्रैप करना। हजरत जी खुतबा आप देंगे आज जुमे का? ओके ठीक है। आ गया जी, आज आपको पता है मैं आपसे क्या बात करने लगा हूं? आधों ने कहा हमें पता है, आधों ने कहा नहीं पता। उसने कहा जिन्हें पता है वो उन्हें बता दो, जिन्हें नहीं पता। तो ये फजीलत का मेयार जो है ना ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये बस जो गॉड कॉन्शियस ज्यादा है, वरना हम आमतौर पे थोड़ा सा जो है ना वो हो जाते हैं कि यार इस बंदे की ड्रेसिंग चेक करें, ही मस्ट बी समथिंग स्पेशल और समवन स्पेशल, इसमें वाकई कुछ है। फायदा वैसे उठाएं इससे। आपको अगर ड्रेसिंग का एहसास है कि ड्रेसिंग से कोई इंपैक्ट अच्छा आता है तो ड्रेसिंग को यूज कीजिए, ना चले बन के आए। अच्छे लगने चाहिए ना हमें, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं आप, बाकी भी सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, डोंट वरी। तो हमें अच्छा लगना भी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए, दैट्स गुड। तो हम याद रखें, लेकिन असल में जो फजीलत है वो किसकी है? तकवे की, जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। और ये फजीलत के वजह से मजीद क्या फरमाया, अब फजीलत तो बरतरी के सारे दावे, खूनो माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। इस बात का क्या मतलब है भला? अरब में नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलती थी, इनके बड़े ने हमारे बड़े को मारा था, उस वक्त से हमारी इनके साथ क्या है? दुश्मनी है। अब उस एक मारने के चक्कर में कितने मारे जाते थे, लेकिन दुश्मनी फिर भी कायम रहती थी। ये है जो चीज है उनमें पाई जाती थी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारी बातें जो है ये झूठी हैं, कोई इंतकाम नहीं आगे चलेगा कि एक के चक्कर में आप हजारों को मार दें, कोई इंतकाम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी से ऊंचा नहीं है नीचा नहीं है, सारे के सारे इंतकाम मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्लाह की तौलियत, इसके बाद तवलियत भी इसकी एक प्रोनाउंसिएशन आती है, लेकिन मैंने नेट से देखा था वो तौलीत इस तरह से करके उसे पढ़ रहे थे। खैर, और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत इसी तरह बाकी रहेगी अला हाल ही, यानी कि जैसे है चल रही है वैसी चलेगी। असल में बैतुल्लाह की जो चाबियां हैं अल्लाह ताला के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिस खानदान के लिए मुतय्यन की है वो आज तक उन्हीं के पास चलती आ रही हैं। ठीक है, तो वो जिस तरह से है वो उसी तरह से है, और जिस तरह से पानी पिलाने का रवाज आज भी उनमें वैसे है। रास्ते में रुक रुक के जनाब वो गाड़ी में से उतरते हैं और जहाँ पे कोई खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है वो पानी में जनाब बांट रहे होते हैं, वहाँ पे बोतलें निकाल के पानी की दे रहे होते हैं। तो ये तो एक वहाँ पे आज भी जो चीज़ है अल्लाह ताला ने बाकी रखी हुई है। तो फरमाया कि ये जो है ना इसी तरह से बाकी रहेगी। और मज़ीद आगे जो है ना ये है ज़रा मेरे और आपके आंखें खोलने के लिए बड़ी अहम स्टेटमेंट आ रही है। स्टेटमेंट हर एक ही अहम है, लेकिन ये ज़रा ख़ास तौर पे हमारे माहौल में ज़रा फिट हो रही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि अल्लाह के हुजूर तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ लदा हो और दूसरे लोग सामान्य आखिरत लेकर पहुंचे, और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा। अब ये छोटी बात नहीं है, ये जो फरमाया ना कुरैश के लोगों, ये खास बात है। ये भला कैसे खास बात है? कुरैश को अल्लाह ताला ने चुना हुआ है और उन्हीं में फिर आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए। तो ये अहादीस से भी पता चलता है कि कुरैश को अल्लाह ताला ने चुना हुआ है। दे वर द चोजन पीपल एट दैट टाइम। और उनमें ये चीज और ज्यादा थी, एक तो अरब, दूसरा फिर उनमें खानदानों में तकसीम होती होती सबसे टॉप पे चीज आ गई कुरैश। ये उनमें भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे
और अगली बात क्या, किस वजह से? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक की वजह से, कि चूंकि ये हम में से हैं तो हम तो स्पेशल है ना, और अल्लाह ताला ने वाकई उन्हें स्पेशल बनाया, चुना तो हुआ है। लेकिन बात जरा समझिए, फरमाया कि ऐसा ना हो कि इसी मान में रह जाओ कि चूंकि हम चुने हुए हैं तो अब क्या होगा, अब जनाब हम जो मर्जी करें। कुरैश को कह दिया अपने खानदान को कि ऐसा ना हो कि तुम जो है तुम दुनियावी चक्रों में पड़ के तुम अल्लाह को भूल जाओ और दूसरे लोग आखिरत का सामान लेकर आए, अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी काम नहीं आऊंगा। ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, कुरैश को कहा जा रहा है। और यहां से भी आगे बढ़ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमा दिया, हदीस का मफहूम है कि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल कर लेना, मैं तुझे अल्लाह से बचाने के लिए किसी काम नहीं आऊंगा। मुझे अब बताइए, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ानदान में ख़ास तौर पे बात करें तो वो जो बेटी हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे बढ़कर कोई महबूब होगा? सोचें ज़रा, जिन जो आती हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, जिन्हें ख़ास तौर पे वक्त रहलत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अपनी बेटी को बुला के कि तुम मुझसे सबसे पहले मिलोगे। इतनी बात, अहम बात। और बेटियां इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि बेटी का वालिद के साथ क्या ताल्लुक होता है, या वो शादीशुदा हजरात समझ सकते हैं जिनकी बेटियां हैं। इवन आई कैन सम बिट अंडरस्टैंड इट, मुझे कुछ ना कुछ समझ में आता है यार क्या बात है। तो ये फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से भी क्या फरमाया जा रहा है, अमल खुद करना है, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। अगली बात, अपनी फूफी हज़रत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा, अमल खुद करना है। अपने चचा हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी फरमाया हुआ है, अहादीस में ये बात आती है जिसका मफहूम क्या, अमल खुद करना है, मैंने काम नहीं आना। मुझे अब बताइए, हम ये सोचेंगे चूंकि हम तो उम्मत मुहम्मदिया में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमें खुली छुट्टी है, तुक बनता है कोई कि अब हम जो मर्जी करें, जबकि उन्होंने अपने खानदान में भी खास तौर पे स्पेशलाइज्ड और पिन पॉइंट करके अपनी बेटी को, अपनी फूफी को, अपने चचा को जो बड़े करीबी हैं उनसे भी ये फरमा दिया कि भाई मैंने काम नहीं आना, इस चक्कर में ना कहीं रहना। यानी कि इसे अगर हम आज एक्सप्लेन करें तो कहीं इस वहम में ना रहना, खुशफहमी में ना रहना कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इमामुल अंबिया हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चूंकि वो तो मेरे वालिद हैं, तो अगर मैंने नहीं जन्नत में जाना तो फिर किसने जाना, मुझे अमल करने की कौन सी जरूरत है, ये ना सोचना। वो तो मेरे भतीजे हैं, ये ना कहीं सोच लेना, अमल अपना खुद करना है। बात की थोड़ी समझ आ रही है? तो जब मेरे हाथ में किसी का हक आए और मैं ये सोचूं कि भाई खाजा चुप करके, क्योंकि तुम उम्मत मुहम्मदिया में हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस पे तुम्हारा हक है, इसे रगड़ जाओ चूंकि बख्शे तो तुमने जाना ही है। ये कितना बड़ा ब्लंडर है जो हो रहा है मुआशरे में। क्या ये लोग नहीं है जो ये सारी चीजें कर रहे हैं? मैं आपके सामने हकीकी बात बताता हूं। एक जगह पे मैं जुमा पढ़ाता हूं, खुतबा का अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मेरे जैसे बंदों को भी अल्लाह ने मौका दिया हुआ। तो वहां पे क्या हुआ, एक बुजुर्ग ने बताया, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की जहाँ पे शादी हुई है ना, वहां पर वो हुआ ये था कि उनकी जो मिसिज है ना, जिनकी बेटी है उनकी जो मिसिज है ना, वो उनके भाई की तरफ यानी कि बच्ची के मामू की तरफ शादी हुई है, उनके बेटे की तरफ। तो हुआ क्या है कि उनके जो थे ना नाना, वो वक्ते वफात वो अपनी बेटी को हिस्सा दे गए, और वो जो अब्बा जान है ना जिनकी तरफ शादी हुई है, वो जो मामू है, मामू को सबसे बड़ी टेंशन ही है कि मेरी बहन ने हिस्सा क्यों लिया। और दाढ़ी माशाल्लाह पूरी है, लेकिन शायद दाढ़ी के कॉन्सेप्ट से ना वाकिफ हैं। दाढ़ी तो हमें रखनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लाजमी रखनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा वो भाई इसकी वजह से हमारा एक ताल्लुक बनता है और गहरा होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अगर दाढ़ी रख के हमारा कॉन्सेप्ट वो जो है, हमें ठीक है इंशाल्लाह इसकी अजर सवाब तो मिलेगा, अगर हमने दाढ़ी रखी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनके फरमुदात की वजह से हमने रखी हुई है, दैट्स गुड। लेकिन अगर बाकी चीज़ों को हम किसी खाते में ही ना लेके लाएं तो क्या होगा? तो ये है, वो कहते हैं कि उन्हें सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मेरी बहन ने हिस्सा लिया क्यों, हालांकि डिमांड नहीं था किया, वो खुद दे गए, क्योंकि शायद उन्हें पता था अपने पुत्र दियां हरकतां था।
कि अगर इसके चक्कर में आए तो इन्हें तो माफ़ नहीं करना, तो बेहतर है कि खुद ही दे जाऊं। अब उन्हें यह है कि अगर वो दे के भी गए तुमने क्यों लिया, ये है माशाल्लाह, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। वो पता नहीं क्या हम समझे बैठे हैं कि यार जिसका मर्जी हिस्सा है, आने दो आने दो आने दो बस। तो उसके बारे में याद रखिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी का ये कॉन्सेप्ट है ना कि कोई बात नहीं, मेरी बहन का हिस्सा जो है उस पर मेरा हक है, और हम फिर क्या कहते हैं, हाँ भाई 10 भैना हिस्सा लेना है कि भरा रखना है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है ना, बताओ जी हिस्सा लेना है या भाई रखना है, तो बेचारी बहन जो होती है वो होती नरम दिल की है, वो कहती है मैंने क्या रखना है, वो भाई रखना है। अब फिर मुझे क्या कहते हैं, मैंने जुमा पढ़ाया पूरा इस पर, मैं चंगी जाके तबीयत सेट की उनकी सबकी, ना मैंने कहा कि यार खुदा का वास्ता क्या कर रहे हो, तुम हक मार रहे हो, क्या करोगे कल को। तो एक जो है ना वो कहते देखें जी बहन खुद ही नहीं लेती। मैं क्या सदके जावा मैं तुहाडे, बहन खुद नहीं लेती, कि उसे पता है कि अगर मैंने हिस्सा लिया तो तुसी अगे करना की ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मैं कहा बहन वो होती है अगर वो बाजार से एक जूता लेकर आए ना और अपने भाई के पास जाए मिलने के लिए और मिलके जूता वहीं पे भूल जाए तो घर चली जाए, घर जाके कॉल कर देती है कि भाई मेरा ना जूता रह गया तो किसी के भेज देना। वो तो नहीं कहती कि भाभी नूं पवा दो। नॉर्मल यही है ना। और यार जो जूता नहीं छोड़ती वो प्रॉपर्टी क्यों छोड़ रही है, सोचने वाली बात है कि नहीं है। और अगर आप जो कहते देखें जी हमसे मोहब्बत बड़ी करती है, मैं कहा तुम नहीं करते, हाँ जी मैं भी करता हूं, मैं कहा अपना हिस्सा उसे दो। तुम मोहब्बत करते हो ना तो तुम क्यों नहीं देते। तो सारी मोहब्बतें जो है वो बहन के लिए रखी हुई हैं कि ये मोहब्बतें नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज करवाना है, उससे कुर्बानियां लेनी है। आप सोचे यार जो बंदा अब कहने को क्या है, राज़क कौन है। अब ये भी बंदा यही कहेगा राज़क अल्लाह है, पर अगर बहन ने हिस्सा ले लिया तो दबाले हो जाएगा। और अगर जहेज ना वो लेके आई जहां पे शादी होनी है फिर भी उसके पीछे पड़ जाए। मेरा कज़न है उसकी शादी का मामला हुआ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक आने का जहेज नहीं दिया, ये अल्लाह ताला का मुझ पे एहसान है, क्योंकि मैं पहले तय किया हुआ था कि मैंने इस लानत में से निकलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, ये नहीं है कि उन्होंने कोई कहा था, नहीं, वो कहते हैं हमने जहेज देना है, मैंने कहा मैंने नहीं लेना, वो कहते लेकिन हमने देना है। और वो जो था वो मेरे बरादर निस्बत ही हैं, उनसे बात हो रही थी, क्योंकि वो जो मेरे मिसिस के जो वालिद साहब हैं उनकी डेथ हो चुकी थी पहले ही। मैंने उनसे कहा अब बात हो रही है आमने सामने, मैंने कहा कि हमने जहेज नहीं लेना। उन्होंने कहा लेकिन हमने तो अपनी बहन को देना है। मैंने कहा लेकिन यार हमारी शर्त ही है कि हमने लेना ही नहीं है किसी सूरत में। स्टैंड तो मैंने ही लेना था ना भाई, आपने अपना जवाब खुद देना है, तो स्टैंड मैंने लिया हुआ था। मैंने कहा जी मैंने नहीं लेना। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी बहन को ही देंगे ना जो भी देना है। मैंने कहा यार फिर कहीं और देख लें, फिर सॉरी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट किया हुआ है कि मैंने जहेज लेना ही नहीं, इसका ताल्लुक इससे बिल्कुल नहीं है कि वो दे सकते हैं कि नहीं। और भाई आप देना भी चाहो तो मैंने नहीं लेना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके पहने तो बगैर भी कम चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक आने का जहेज नहीं लिया, और अल्लाह ताला का एहसान है कि आज तक अल्लाह ताला ने बेहिसाब नवाजा है। मैं जरा अपना आर्गूमेंट मुकम्मल करता हूँ, फिर मैं आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन देता हूँ। मैं अपने कज़न की ना वो शादी का मामला हो रहा, तो वहाँ पे मैं गया, तो मैं बैठा हुआ वो जो मेरा कज़न की वालदा साहबा के पास, तो एक दो तीन पहले पता है ट्रक आने शुरू हो जाते हैं तो ट्रक आ गए, तो मैं क्या है कि ये पंजाबी स्पीकिंग कहती उन्होंने अपनी धी नूं देना जो भी देना। मैं हाँ तुहाडे मुंडे ने तो बैठ दे थले वड़ के सोया करना बात है यार, लॉजिक चेक करो। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਖੱਟੂ ने की देना है। वो अल्लाह ने तो इसकी जिम्मेदारी मर्द पे लगाई है। और भाई आपने खर्च करना है, जहाँ पे आते हैं ना अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ताला ने औरतों पे एक फजीलत दी है, हाकिम बना कव्वाम बनाया है। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी बताया क्यों बनाया है, वो इसलिए, पहली लॉजिक अल्लाह जिसे चाहता फजीलत देता है। दूसरी लॉजिक फरमाया इसलिए क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द खर्च करता है तो इसका रुतबा एडिशनल है, ये याद रखिएगा। मर्द खर्च करता है, और अगर मर्द खर्च के मौके पे बीवी को देखता है तो फिर क्या होगा, जो जहेज लाएगी ना फिर वो कव्वाम बन जाएगी। वो कहेगी आज जरा बेड पे बैठे हैं ना मेरे अब्बा जी ने दिता है, तू इन्ने जोगा होंदा ते बना लेंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी और मिसालें हैं।
बहुत सारी मिसालें हैं कि ऐसी कि जो नहीं रहते, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हैं, ऐसे ही है ना? यस, कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जहेज लेंगे इंशाअल्लाह। ऐ हुई ना गल, इसे कहते हैं मर्द होना। अब पता चलेगा आप कायम रहते हैं कि नहीं रहते। इंशाअल्लाह अल्लाह देता है रिज़्क, राज़िक कौन है? मसला ये है कि हमें यकीन तो है, हमें भरोसा ही नहीं है। वो जैसे ना एक बंदा था, वो बड़ा एक्सपर्ट था अपनी स्किल में, एक बिल्डिंग बहुत ऊंची, दूसरी बिल्डिंग बहुत ऊंची, उसने दरमियान में रस्सा लगाया, उसने कहा मैं इस पे चल के जाऊंगा, नीचे रश लग गया, उसने कहा क्या कर रहा है, मरेगा। वो जनाब वो अपनी तैयारी में मगन है, लोगों की नहीं सुन रहा, नीचे रश लग गया, कोई नेट, कोई सेफ्टी नेट कुछ भी नहीं है। वो कहा यार गिरा, इतनी हाइट से बचने का चांस ही कोई नहीं है। उसने किसी की नहीं सुनी, उसने अब रस्सा वगैरह सेट वगैरह किया, उस पर चलना शुरू कर दिया, और वो चल के दूसरे किनारे पहुंच गया, दूसरी बिल्डिंग पे पहुंच गया। सबने क्लैपिंग की, बल्ले बल्ले क्या बात है। और उसने कहा आपको क्या लगता है कि मैं यहां से वापस भी जा सकता हूं? क्या जवाब आया होगा? और उसने जाने से पहले एक चीज मैं स्किप कर गया, उसने जाने से पहले अपने बच्चे को अपने कंधों पे बिठा लिया। एक तरफ से जब आया ना, कंधे पे अपने बच्चे को बिठा दिया। सारे कहते खुद भी मरेगा, बच्चे को भी मरेगा, क्या कर रहा है। लेकिन आखिरकार जब वो चला गया, सारे कहते बल्ले बल्ले क्या बात है यार। उसने कहा आपको क्या लगता है मैं वापस भी आ सकता हूं? सबने कहा आ सकते हो। क्या आपको यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। उसने कहा फिर आप में से कौन है जो मेरे कंधों पे बैठेगा? उसने कहा यकीन तो है पर भरोसा कोई नहीं है। ये बात है, हमें भी अल्लाह पे यकीन तो है कि वो राज़िक है, यकीन तो है कि इज्जत देने वाला वो है, यकीन तो है कि बचाने वाला वो है, पर हमें भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि अगर हमने अपना मामला अल्लाह के वाले किया, मैंने सच बोल के इस सौदे का नुकसान कर लिया, तो पता नहीं दोबारा लबना है कि नहीं। कहने को राज़िक हम कहते हैं अल्लाह ही है। ओ भाई जब ये अंदर उतरेगा ना फिर पता चलेगा। जी प्लीज। भरोसा, यकीन, इनमें फर्क क्या है? पहले यकीन है, उसके बाद उसकी एडिशनल फॉर्म जो है ना, हाई लेवल जो है वो भरोसा है कि आप उस पर फिर उम्मीद भी रखें कि यही मेरा काम करेगा, और आपको पूरा भरोसा है, आपने तवक्कल उस पर कर दिया कि अब अगर मुझसे कुछ भी हो गया ना, मैंने अल्लाह की रजा के लिए काम किया, मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मेरे साथ अब सही करेगा। यह भरोसा। जी सॉरी आपका पॉइंट सॉरी रह गया, एक्सक्यूज मी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? जी प्लीज प्लीज प्लीज। आपने ये शर्त रखी थी कि मैं जहेज नहीं लूंगा, बिल्कुल ऐसे। तो जो आपकी ज़ौजा है उनकी तरफ से आर्गुमेंट आ रहा था कि हम तो देंगे जहेज उनकी फैमिली की तरफ से, तो वो उस वक्त ये कहते कि हम उनको उनका हिस्सा दे रहे हैं, उनका हिस्सा देते, तब आप क्या कहते? वो उनका हिस्सा था ही नहीं। अगर वो कहते हैं हम हिस्सा दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर वाकई हिस्सा है और पता चल जाता है कि ये हिस्सा है कि सिर्फ नाम बदला है, पता चल जाता है ना, हमें भी, हमने भी तो अल्लाह ताला को जवाब देना है कि नहीं करना। तो अगर वो कहता है कि हम हिस्सा दे रहे हैं, मैं कहूँ मोस्ट वेलकम, आन दो। तो पता है ना कि मैं ये भी ना पूछता कि केड़ा हिस्सा कहाँ से आया, बाकियों को कितना मिला, बाकियों को दिया कि नहीं दिया, मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं कहता अच्छा हिस्सा है बस आन दो, जे तो नहीं है ना, नाम बदल गया, चीज़ तो वही है। जैसे हम कहते हैं कि ये प्रॉफिट है, ये सूद नहीं है, हम कहते हैं ना, तो वो जो असल में प्रॉफिट होता है वो सूद है, बस हम कहते नहीं ये रिश्वत नहीं है, ये तोहफा है। वो ये नाम बदल के हम कहानी सुना रहे हैं लोगों को। ओ भाई आप दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, रब को सब पता है, वो आपके दिल से गुजरने वाले वसवसे तक से वाकिफ है, उसे एक एक चीज का पता है कि ये किसे बेवकूफ बना रहा है, ये असल में अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। मुझे राज़िक भी कहता है, मुझे किसी खाते में भी नहीं गिन रहा, ये भी मानता है कि मैं अलीम हूं, सब कुछ जानता हूं, और अपनी तरफ से मुझसे ही छुपा रहा है। तो वो बंदा खुद को बेवकूफ बना रहा है ना। इसलिए हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये चीज इस तरह से। आपकी चीज होगी क्लियर? ओके ये चीज हो गई, वाज़ेह हो गया। और भाई अपना अमल खुद करना है, अपना जवाब भी खुद ही देना है कब्र में, किसी ने नहीं आना आपके हिस्से का जवाब देने के, जवाब खुद देना है। और याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो मर्जी करें वहां पे जाके सही जवाब दे दें, ऐसा नहीं है। हिप्नोटिज्म सुना हुआ है? उसमें वो हिप्नोटाइज करते हैं और बंदा वो सारी बातें बता देता है जो उसने नहीं बतानी होती। तो सोचो ये तो खुदा ना खासा हिप्नोटाइज करके चीजें पूछी जाएं। हम कहते भाई हम एक बात है सिर्फ समझने वाली ना, ख्वाब में हम बाज़ कुछ लोग जो हैं ख्वाब में बोलते हैं, होता है ना ऐसे, क्या ऐसा होता है
कि ख्वाब में वो सिर्फ वही बात करें जो वो करना चाहते हैं? नहीं, बाज़ औक़ात वो पता नहीं कौन कौन सी बातें कर जाते हैं। और अम्मी जी फिर पूछ रही होती, हाँ पुत्रा दासा भला वो कौन है? हम होता है ना इस तरह। मेरे साथ हुआ नहीं है वैसे, आपने कहा यस सर तो इसका मतलब होता है। तो ये बात समझिएगा कि ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह ताला को पता है। ये जैसी जिंदगी गुजारनी है ना वैसा ही जवाब होना है। अगर जिंदगी में वाकई अल्लाह को इलाह माना हुआ तब आपने कहना है कि मेरा दीन इस्लाम है और मेरा रब अल्लाह है, तब आप जवाब देंगे, वरना जवाब नहीं दिया जाएगा। और इसके बारे में बड़ा खूबसूरत एक पॉइंट था। उसने कहा एक बंदा था, वो मंडी सब्जी मंडी में जाके धनिया बेचा करता था। हकीकी वाकया, उसकी जिंदगी इसी में गुजर गई सारी। कोई नमाज नहीं, कोई पता नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ ये कहा करता था कि तनिए दी गुत्थी 4 आने। उस वक्त यही था। तो तनिए दी गुत्थी 4 आने, इस तरह से क्या कि वो बेचा करता था। जब उसका आखिरी टाइम आया ना, लोगों ने कहा कलमा पढ़ो, तो उस वक्त उसकी जुबान से सिर्फ ये बात निकल रही थी कि तनिए दी गुत्थी 4 आने। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। भला क्यों भाई? जैसे जिंदगी गुजारी है ना वैसा एंड होना है। ये मत समझें कि मैं जनाब जो मर्जी मन मानी करता रहूं और मेरा एंड जो है वो मैं कलमा पढ़ लूंगा। इतना सिंपल नहीं है। वो इसने बड़ी प्यारी बात की ना, हम चाहते हैं कि हम अयाशियां करें फिरौन वाली और हमारा एंड हो मूसा वाला अलैहिस्सलाम। ऐसे नहीं होता। जैसी जिंदगी गुजारेंगे वैसे ही एंड होगा। अगर फिरौन वाली अयाशियां होंगी तो फिर होते भी फिरौन वाले ही होंगे, फिर डोबे भी वही लगेंगे। बात समझ आ रही है? इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। अपना अमल खुद करना है। आगे सुनिए, कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारी झूठी नखुवत को खत्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे फख्र और मुबाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे दादे ने परदादे ने फलां ने ये किया था इसलिए हम देखे हम क्या हैं। उनका जो भी किया है वो उन्होंने किया था, तुमसे वो पूछा जाना जो तुमने किया। ठीक है जी, जो उन्होंने किया वो करेंगे, उसका जवाब वो खुद देंगे, तुम्हारा खुद तुमने। और अगली बात देखें, ये जो बहुत हमें ज़रा मोहतात रहना चाहिए इस हवाले से, लोगों तुम्हारे खून माल और इज्जतें एक दूसरे पर कत्ल हराम कर दी गई हैं। खून नाहक कत्ल नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसके बारे में तो यहां तक कॉल आता है कि अगर एक कलमा गो को कत्ल करने में पूरी इंसानियत इकट्ठी हो जाए, उसका कसूर नहीं है लेकिन उसे बेगुनाह को कत्ल किया, यह अल्लाह की नजर में इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह सबको उसकी वजह से जहन्नम में डाल देगा। अंदाजा लगाइए जरा, इतनी बड़ी बात है। तो सोचें जरा कि जिन्होंने लाइनें लगाई होंगी उनके साथ क्या होगा। तो फरमाया तुम्हारे खून और दूसरा क्या, माल भी किसी का तुम हाथ आ नहीं सकते। आपको पता चल गया ना ये हिस्सा, ये माल मेरा नहीं है, ये उसका पहुंचाना है आपने अराल में। अगर ले गए तो आग लेकर जा रहे हैं। इज्जतें पामाल नहीं कर सकते। इंसल्ट कर देना बहुत बड़ा जुल्म है। और इसकी मिसाल सुनिए, मिसाल क्या दी है। फरमाया कि इन चीजों की खूनो माल और इज्जतों की मिसाल, फरमाया इन चीजों की अहमियत ऐसी ही है जैसी तुम्हारे इस दिन की और इस माह मुबारक यानी कि जिलहज की, खासकर इस शहर में हज वाला दिन है, जिलहज्जा का महीना है और मक्का मुकरमा है। सोचिए कितनी अजमत है उस दिन की। फरमाया जैसे इसकी अजमत है और फजीलत है, इसी तरह से तुम्हारे खून माल और इज्जतों की अजमत है। तुम किसी का हक मार के समझो कि मैं हज कर आया तो जनाब मौजा लग गई, मैं तो अब जनाब ऐसे हूँ जैसे सारे गुनाह लपेट दिए गए, हक मारे हुए हैं, 2 नंबरियां की हुई हैं, सूद खाया हुआ है, बहन का हिस्सा हड़प किया हुआ है और सोच रहा है एक हज करो सब पार निकल गए। क्या ये किसने सिखाया हमें? कम अज कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सिखाया। उन्होंने फरमाया कि खबरदार, जैसे वो कहते हैं ना, हाजी साहब थे ना, मतलब हज एक बहुत बड़ा अमल है, याद रखिएगा, लेकिन उसे रूह के साथ समझिए। कहीं ऐसा ना हो हज तो करें सारा ज़ाया हो जाए, ऐसा ना हो कहीं। जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाजो रोज़ाओ कुर्बानियो हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। ये मामला है। हम बाज़-औक़ात इनमें होते हैं, अल्लाह को भूला होता है, बस एक रिचुअल चल रहा होता है, अल्लाह की याद के बगैर ही चल रहा होता है। जैसे एक बंदा था हज करने के लिए गया और उसका खाता इतना लंबा हुआ था दुकानदार के पास, उधार लिए जा रहा वापस ही नहीं कर रहा। हज करने चला गया, दुकानदार को भी उम्मीद लगी, लो जी ऐस पर कोई चांस लगेगा क्योंकि हाजी साहब आ रहे हैं वापस, मेरा पैसा कम से कम मेरा हिसाब पूरा करेंगे। हाजी साहब वापस आए, घर भी नहीं गए, सीधे दुकान पे गए।
उसने कहा मैंने कहा था ना हाजी साहब हैं, अब इंशाल्लाह मेरा सारा हिसाब क्लियर कर देंगे। उसने कहा ओए मेरा खाता निकालो, उसने खाता निकाला। उसने कहा मेरे साथ के साथ हाजी लिखो, हाजी लिखो आके फिर गए। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हाजी का मकसद ये नहीं है सिर्फ हाजी साहब लिखवा लें और नाम के साथ बड़ा सारा करके हाजी फलां साहब, ये नहीं है मकसद। मकसद है टू बी समथिंग, टू चेंज योर सेल्फ, टू रेवोल्यूशनाइज योर लाइफ। ठीक है, ये है इसका पर्पस। अगर आप पहले भी वैसे थे बाद में भी वैसे ही हैं, जहां से जो गलत काम छोड़ के गए थे वहीं से आगे आगे चला दिया, तो कौन सा हज किया आपने? आपने जाके इतने आला मुकामात को देख कर आए हैं, बैतुल्लाह को देख के भी तुम्हारा अंदर नहीं बदला। क्या हो गया तुम्हें? कितने सख्त हो गए अंदर से। ये वो चीजों में याद रखनी चाहिए। फरमाया जो उनकी फजीलत है वही खूनो माल और इज्जतों की में, आप किसी पे कोई बात नहीं कर सकते। आपस में दो बंदे बैठे हुए कहते हैं यार फलां के बारे में पता है, मुझे पता चला वो ऐसा है। कहते छाड़ परा मैं तेनू दसना ਉਹਦੇ बारे मैनू की पता। अब ये देखिए क्या चीज है, बजाय इसके कि उस पर पर्दा डालें, हम उसके वो बातें जो हमने सुनी होती हैं वो भी जाके कच्चा चटा उसका खोल देते हैं और बातों की हकीकत कोई होती नहीं है। तो ये ऐसे है कि जैसे आप हज वाले दिन पे कोई बहुत बड़ी करप्शन कर रहे हो और मक्का में वहां पे जाएं और हज वाला दिन हो, उस दिन आप कोई फजूल हरकत करें, गुनाह का काम करें, सोचे कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? ये बात है कि अगर आपने किसी की इज्जत पामाल की है तो हमारे अंदर कोई खाता ही नहीं है। अखबार में किसी के बारे में जो मर्जी लगवा दो, जिस पे जो मर्जी बात कर दो, पब्लिक मीडिया पे आप जाएं, आप टिकटॉक बना के जिसके बारे में जो मर्जी कर दो, ओके ठीक है, सब चलता है। ये पता नहीं किसने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हमें। और यहाँ पे सॉरी एक चीज और थी कि अल्लाह ताला तुम सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बात पुरस फरमाएगा। अल्लाह पूछेगा कि क्या क्या किया था, क्या निशानी थी, क्या तुम्हारे पास गारंटी थी, तुमने फलां के बारे में बात की। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका इस हवाले से ख़ास तौर पे फरमाया, पूछा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, सही हदीस है, मैं तर्जुमा मफ़हूम आपके सामने पेश करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा किराम से, मुफलिस कौन है? आपके ख्याल में आप जानते हैं कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा किराम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो मुफलिस वो होता है जिसके पास कोई रुपया माल दौलत इस तरह की चीज़ें ना हो, साजो सामान ना हो। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा, गरीब वो होगा जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात जैसे अमाल लेकर आएगा, बड़े बड़े अमाल लेकर आएगा, लेकिन फरमाया कि ताहम इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत धरी होगी, किसी का माल ना हक खाया होगा और किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। फरमाया चुनांचे इसकी नेकियां लोगों को दे दी जाएंगी और इस पर वाजिबुल अदा हुकूक अभी बाकी होंगे। नेकियां इसकी दी जा रही हैं, वो सारे जिनका हक मारा हुआ था, जिस पे उसने गीबत जिनकी की होगी, ये तो 2 नंबर है, ये है, इस बंदे ने फलां जगह पे करप्शन किया है, मैं जानता हूँ इसने 2 नंबरी की हुई है, ऐसी बातें की हुई हैं, हालांकि पता भी कुछ नहीं था। वो बंदा आ जाएगा कि अल्लाह इसने मुझ पे तोहमत लगाई थी, अल्लाह कहेगा ठीक है इसकी नेकियां उठा के उसे दे दो। और अगर इसने इतने लोगों के हक मारे हुए हैं और इसकी नेकियां बेचारे की खत्म हो गई, फरमाया फिर उनके गुनाह इस पे डालने शुरू कर दिए जाएंगे और इसे घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये है जो फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस है। अब समझ आई बात? अगर आपने खुदा ना खासा किसी का हक मारा है तो फिर आपके साथ खुदा ना खासा क्या हो सकता है? इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट ईजी गोइंग, इट्स ओके, खैर है, आखिरकार तो जन्नत में चला ही जाना है। बात समझ आ रही है ना? तो ये जो है जो रगड़ा लगना है उसके बारे में भी सुन लें। आपको कहा जाए कि यार पीसी में आपको पार्टी दे रहा हूं, मेरे साथ आओ, आप कहते हैं ठीक है जी हम चलते हैं। मैं कहता पहले थोड़े से छितर खा दो। आप कहोगे कैसी पार्टी है? आप कहोगे कि नहीं कहोगे? आप में से कोई ऐसी पार्टी खाने की कोशिश करेगा कि ठीक है मुझे 6 छितर मार दो, मारी जो खाना है खाते जाओ और जाते हुए एक बार फिर ठप्पा लगा जाओ। आपको अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं ना। तो फिर हम पता नहीं क्यों कहते हैं हमने आखिरकार जन्नत में चले जाना, तो मौजा मारो, यहां पे जो मर्जी करो। ये कॉन्सेप्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया हुआ, बल्कि ये फरमाया कि एक बंदा होगा जिसे दुनिया में कभी सुख नहीं मिला होगा, तंगियों में जिंदगी गुजारी होगी दुनिया में, उसे जन्नत में से एक गोता दे के निकाला जाएगा और अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे कभी दुनिया में कोई तंगी आई थी? वो जवाब देगा
या अल्लाह तेरी कसम है, तेरी ज़ात की कसम है, मैंने कोई तंगी नहीं देखी। जन्नत का एक गोता बंदे को सारी तंगियां बुला देगा। और एक बंदा ऐसा होगा जिसने दुनिया में कभी कोई मुश्किल वक्त नहीं देखा होगा, कोई मुश्किल नहीं उस पर पड़ी होगी, इतना इजी इजी सब कुछ था उसके पास। फरमाया सिर्फ एक गोता लगेगा जहन्नम में से, और अल्लाह पूछेगा बताओ दुनिया में कुछ सुख मिला था कभी? कहेगा या अल्लाह तेरी ज़ात की कसम है, मैंने कभी दुनिया में कोई सुख नहीं देखा। ये है जहन्नम की हकीकत और जन्नत की हकीकत। बात समझ आ रही है? ये इतना इजी ना ले कि कोई बात नहीं, आखिरकार तो जन्नत में चले ही जाना है, तो जो मर्जी करो। जो मर्जी करने के लिए हम यहां पे नहीं आए हुए। जो मर्जी करोगे फिर बाद में जो कुछ होना है ना, बहुत सख्त मैटर है। इस बात को हम समझ के चलें। देखो कहीं मेरे बात गुमराह ना हो जाना कि आपस में कुछ तो खून करने लगो, कत्लो गारत में पड़ जाओ, ये ना कहीं काम करना। फरमाया अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वो उसका पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। अमानत रखवाइए तो पहुंचानी भी है। फिर ये नहीं है कि खैर है वो अल्लाह करे ना ही आए, दुआ कर या अल्लाह एक बारी बस ये मेरे को लान दे, नहीं ऐसा नहीं है। और ये हकीकी वाक़या एक और मुझे याद आ गया, अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले कि हम अपने वक्त में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लें। एक हकीकी वाक़या हुआ ये कि एक बंदा था, उसकी औलाद होती थी या तो अपाहज थी या फौत हो जाती थी, बड़ा परेशान था। बड़े हकीमों से डॉक्टरों के पास गया, कोई गल नहीं बन रही, क्या हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। एक बंदे से मिला जिसने दीन को प्रॉपरली, वाकई अल्लाह वाला था, दुनिया को भी स्टडी किया था, दीन को भी प्रॉपरली स्टडी किया। उसने कहा मेरे साथ ये मसला है। उसने सवाल बड़ा अजीब किया, उसने कहा मुझे ये बताओ कहीं किसी का हक तो नहीं मारा हुआ? उसे गुस्सा आ गया इस बात पे। वो कहता ये आप कैसी बात करते हैं, मुझे आप लाज बताएं, लाज क्या, आपने कैसा सवाल किया, चले जाए यहाँ से, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। उसने कहा यार ठीक है मुझसे बात ना करो, ये मेरा कार्ड है, अगर कभी कुछ याद आए या कोई बात करना चाहो तो मुझसे बात कर लेना, अपना नंबर दे के आगे। कहते चंद माह बाद मुझे उसकी कॉल आई और उसने कहा कि आपके उस सवाल ने मुझे हिला के रख दिया था। मैं बड़ों के पास गया था, मैंने अपना मसला बताया था, लेकिन किसी ने ये नहीं था पूछा कि तुमने कुछ किया तो नहीं हुआ। आप पहले बंदे हैं जिसने ये वाली बात की थी, मैं सारी रात सो नहीं सका, रोता रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मुलाकात तय होगी। मुलाकात हुई। उसके असल में बात यह है कि मेरे वालिद साहब जब अपने आखिरी दमों पर थे तो हमारी जितनी भी, वालिद साहब ठीक ठाक थे, मैं हम 2 ही भाई हैं, कोई बहन नहीं थी, 2 ही भाई थे हम। वालिद साहब का एंड टाइम आ गया। मेरा दूसरा भाई जो अमेरिका में सेट था, मेरे अब्बा जान ने कहा कि पुत्र जो है ना जायदाद, वो उसका हिस्सा भाई को पहुंचा देना, जो तुम्हारा हिस्सा तुम रख लेना, खत्म। तो कहते मैंने ये सोचा कि वो तो पहले ही सेट है। अब ये देखिए शैतान कैसी कैसी पट्टी पढ़ाता है। वो तो पहले ही सेट है, उससे ज्यादा मुझे जरूरत है। और उसने कहा मेरे बच्चों को ज्यादा जरूरत है। तो मैंने ये सोच के वो हिस्सा रख लिया। तो उस बंदे को जिसे बता रहा था उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा देखो तुमने अपने बच्चों के लिए रखा, अल्लाह ने तुझसे तेरे बच्चे ही ले लिए। ये है अल्लाह, जब वो पकड़ता है ना तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता। दुनिया का जो मर्जी डॉक्टर साहब आ जाएं, जो मर्जी जनाब हकीम साहब आ जाएं, ठीक है, वो नहीं कह, जब अल्लाह पकड़ने पर आए ना, अल्लाह मौका देता है, हाँ डील देता है बाज़। हम इर्द गिर्द देखते हैं, हम कहते हैं फलां बंदा तो इतना 2 नंबर है, क्या इतना उसने घपला किया, इतने करप्शन किया, इतने लोगों के हक मारे हुए हैं, वो तो फिर भी मौजे मार रहा है। तो याद रखना, एक बंदा है जो सीढ़ी के पहले स्टेप से गिरता है और एक है जो आखिरी से गिरता है। मुझे बताएं ज़्यादा चोट किसे लगती है? आखिरी बात को। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ना उसे पहले से गिराता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती बात की, वो अल्लाह फिर उसे डील देता है। अच्छा ठीक है, तो समझ नहीं ना आई, चलो ठीक है जाओ। फिर वो आहिस्ता चढ़ता जाता है, चढ़ता चढ़ता जब आखिरी सीढ़ी पे जाता है ना, अल्लाह फिर उसे वहां से गिराता है। लेकिन याद रखना उस वक्त फिर उसके पास लौटने का मौका नहीं होता, वो रगड़ा बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह अल्लाह ताला जालिमों को टाइम भी देता है बाज़ औक़ात, लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है फिर उससे छुड़ा कोई नहीं सकता, ये याद रखिएगा। तो समझदार और खुशकिस्मत बंदा वो है जिसे फौरन ही टेंशन आ जाए। बात समझ आ रही है? जरा सी गड़बड़ की अगर फौरन कोई मसला बन गया, अल्लाह याद आ गया, शुक्र करो, तौबा कर लो, या अल्लाह माफ फरमा दे, मुझसे गलती हुई, अपनी गलतियां याद कर लो फौरन। फरमाया हर बंदा, हदीस का मफहूम है कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, तमाम बनी आदम सारे के सारे बड़े गुनाहगार हैं। फरमाया व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। फरमाया और अल्लाह ताला की नज़र में जो बेहतरीन खताकार हैं वो हैं जो गुनाह होने के फौरन बाद तौबा कर लेते हैं कि या अल्लाह मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा नहीं करता। ये अल्लाह को बड़ा पसंद है।
तो जो कहता है फिर क्यों होया, मैंने तो छोटा सा किया, उसे देखो उसने कितना बड़ा किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं हक मारा, उसे देखो। तो बस ठीक है, फिर आपको नहीं पता उसके साथ क्या होना है। जैसे एक जगह पे ना स्टेटमेंट वो लिखा हुआ है कि जनाब इतने बड़े बड़े पेट वाले, और बेचारों से सीधा होकर बैठा भी नहीं जा रहा, और टेढ़े होके बैठे हुए हैं, 2-3 बैठे हुए हैं, और हैं मौलवी साहब। नीचे लिखा हुआ है अगर पुलसरात से ये गुजर गए तो फिर ऐसी भी लंघ जावांगे। मैं कहा आपसे किसने कह दिया कि ये गुजर जाएंगे? क्या क्योंकि गारंटी है कि ये गुजर जाएंगे? और आप किसी के साथ रिलेट क्यों करते हैं? आपको तो अपनी टेंशन होनी चाहिए मैं गुजर जाऊं। अब उसके चक्कर में पड़ के ये भी पट्टियां हैं जो शैतान में पढ़ाता है कि कोई बात नहीं, फलां जो है ना उसके बारे में तो पक्का है कि उसने जन्नत में ही जाना है, अगर वो चला गया तो मैं भी चला जाऊँ। बात समझ आ रही है ना? ये पट्टियां हैं, ये कहानियां हैं जो शैतान हमें करवाता है और हम उसके पीछे चलते जाते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये खास तौर पे फरमाया कि अमानत वाले तक उसकी अमानत पहुंचाओ। मैंने आपको बता दिया जिसने अमानत में घपला किया उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह दुनिया में भी पकड़ता है। कुछ लोगों को लगता है दुनिया में जो मर्जी करो सब कुछ सिर्फ आखिरत में होना है, यह गलत कॉन्सेप्ट है। अल्लाह दुनिया में भी निशाने इबरत बना देता है, अल्लाह दुनिया में भी जलील और रुसवा करके रख देता है। अल्लाह के खिलाफ जो चलता है ना, अल्लाह फिर कहता है अच्छा ठीक है, अल्लाह फिर उसे निशाने इबरत बनाता है। लोग उसे देख देख के कानों को हाथ लगाते हैं कि शुक्र है हमने नहीं था किया। अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर है। अल्लाह दुनिया में भी अल्लाह है और आखिरत में भी। हमें लगता है जो मर्जी यहां पे करो सिर्फ आखिरत में होना, नो नो नो, यहां पे होना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम दुनियावी तौर पे भी माना गया। फरमाया लोगों हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अपने गुलामों का ख्याल, सारे मुसलमान आपस में क्या है, भाई हैं यार, बराबर। जैसे भाई का हिस्सा, भाई की रिस्पेक्ट करते हैं, वही आपके सारे हैं। किसी पे बात करने से पहले सोचो कि ये मेरा भाई है, क्या मैं उसके बारे में बात करना पसंद करूंगा? नहीं ना करते हैं। आप देखिए हमारी सिस्टर्स हैं, क्या आप पसंद करेंगी? नो, कोई भी नहीं करता। तो मैं ये याद रखना, ये है आपका रिश्ता। कलमे के रिश्ते की वजह से आप भाई भाई हैं। अगर कलमा नहीं है तो फिर रिश्ता टूटता है। फिर बाप का बेटे से भी रिश्ता टूट जाता है अगर कलमा टूट गया तो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल पता है ना, उनका अपना बेटा जो है वो जब अजाब की नज़र होने लगा, डूबने लगा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह ये मेरा भाई है और उसे मेरा बेटा है, ये तूने फरमाया था कि तेरी हाल में से मैं ना उसे गर्क नहीं होने दूंगा, ये मुझ में से है। अल्लाह ने फरमाया वो तुम में से नहीं है। इस बात का मतलब अल्लाह क्या है भाई, जब कलमा ही खत्म हो गया, जब वो इस्लाम में से निकल गया तो अब वो तुम में से नहीं रहा। तुम में से अगर है तो पहला रिश्ता कलमे का, फिर खूनी रिश्ता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी तरह से आप समझिएगा कि हम सब भाई हैं। अगर किसी का हक मारते तो किस लेवल पे प्रॉब्लम है भाई, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। फरमाया अपने गुलामों का ख्याल रखो। हाँ, गुलामों का ख्याल रखो, उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, ऐसा ही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। गुलाम पता है कौन होता है? जैसे बात आई थी, उसे कोई कत्ल भी कर दे तो कोई मुकदमा नहीं होता, लेकिन इस्लाम ने गुलामों को वो हुकूक दिए हैं जिनका कोई हक नहीं होता। इस्लाम ने गुलामों को भी वो हुकूक दिए हैं कि जैसा खुद खाते हो वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा खुद पहनते हो वैसा पहनाओ। तो मुझे ये बताएं कि जो आपके घरों में मुलाजमीन है और ये तो गुलामों से बहुत ऊपर हैं, अगर आप उन्हें बचा हुआ खिलाते हैं, बात समझने वाली है कि नहीं है? आज के दौर में सोचे हमने इसे कैसे अप्लाई करना है। ये हिस्ट्री की बातें नहीं हम पढ़ रहे, ये क़यामत तक के जो गोल्डन प्रिंसिपल्स टू सक्सीड इन योर बोथ लाइफ्स, ये हम पढ़ रहे हैं। ये गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। ये समझ के जाएं कि अगर मेरे ऑफिस में कोई काम करने वाला है तो मैं ये सोचूं कि यार मैं उससे उस तरह ट्रीट करता हूं कि ये मेरा भाई है। क्या मैं इसे वैसा खिलाने की कोशिश करता हूं, वैसा पहनाने की कोशिश करता हूं? अगर आपके घर में कोई काम करने वाली हैं, करने वाले हैं, या ऑफिस में कोई आपके सबऑर्डिनेट है, तो आप सोचें कि क्या आपने उसे उस लेवल का रखा हुआ है? उसके तो गुलाम से बहुत ज्यादा हकूक हैं। गुलाम का तो हक ही कोई नहीं होता। जब इस्लाम गुलाम को यह हक दे रहा है तो सोचो मुलाजमीन के कितने हकूक होंगे। बात समझ आ रही है? जी सर, यहाँ से कोई क्वेश्चन शायद पूछना चाह रहे थे। सर, इस्लाम ने गुलामों का हकूक तो दिए और ये भी कहा कि गुलामों को आज़ाद कराना मतलब एक जिल्लत वाला अमल करार दिया गया, लेकिन गुलामी के कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं खत्म किया? असल में जो चीज़ है ना वो ये है कि आप जब रूट पे बात करें ना तब आपको पता चलता है कि क्यों नहीं किया गया। क्योंकि भाई आप असल में देखें, आप गुलामी के कॉन्सेप्ट को रखें,
لیکن وہ آپ کے بھائیوں کے برابر کے. دوسرا, کھلانا بھی وہی ہے جو خود کھاتے ہو, پہنانا بھی وہی ہے جو خود پہنتے ہو, اور اس کے سارے حقوق اسی طرح سے جیسے خود اپنے, کیونکہ وہ اگر کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے تو وہ تمہارا بھائی ہو گیا. اب جس طرح سے بھائی کے حقوق ہیں وہی اس کے ہو گئے. اس طرح سے کر کے اسے اس لیول پہ لے آئے کہ چاہے تم اسے غلام بھی کہو لیکن اب یہ اس لیول پہ ہے. اگر اسے روٹ سے ہی ختم کر دیتا, فرض کیجئے کہ یہ ہوتا ہے غلامی کا آج سے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں شاید غلاموں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی, کیونکہ ہر غلام جو ہے وہ اپنی کمائی کے قابل تو نہیں تھا. ہر غلام جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ زندگی تو نہیں گزار سکتا. بھئی جس نے آپ کے ساتھ چلا ہوا ہے, آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ کے ساتھ وہ رہنا بھی چاہتا ہے, اچھے طریقے سے آپ انہیں ڈیل کریں تو وہ آپ کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے بہت اچھا کام کر جائے, بجائے اس کے کہ آپ کے چل بھی تو آج تو میں تو فارغ ہیں کیونکہ غلام آزاد, وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کل کو بھوکا مر جائے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے جب غلاموں کو حقوق دیے ہیں, اصل میں یہ اس میں پرنسپل موجود ہے کہ قیامت تک کبھی بھی اگر غلامی کا کانسیپٹ آئے گا تو ان کے یہ حقوق ہوں گے, ٹھیک ہے. تو غلاموں کو نام لے کر تو جو بات کر دی گئی ہے وہ کن کی کر دی گئی ہے, وہ ملازمین تک کے بارے میں بات ہو گئی ہے. از اٹ کلیئر؟ تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو بات ہوئی ہے اسے ہم کس طرح سے لے کر چلیں, اور یہ بات کلیئر ہے. سر اس کے بارے میں رستوں بھی تو کہتے ہیں نا کہ غلامی ایک جو ہے ادارہ ہے, تو اگر آپ ریاست کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ گھر کے کام جو نہیں کر سکتے, تو آپ کے گھر کے کام جو ہے وہ غلام ہی کریں گے, وہی آپ کے جو ہے بیٹر مینجمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے گھر کے کاموں کے. تو اگر آپ ریاست کو اچھی طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو آپ ریاست کے جتنے بھی مطلب کام ہیں ویلفیئر کا, مطلب جو بھی آپ پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ریاست کے کاموں میں مشغول کریں اپنے آپ کو, نہ کہ اپنے گھر کے کاموں میں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ایکچولی میرے پاس ٹائم ذرا شارٹ آ رہا ہے, ہمارا ٹائم تو آئی گیس 2 گھنٹے کا تھا شاید. اچھا, تو وہ اس کے اندر ہی ہے. ایکچولی جو ریکویسٹ چاہیے وہ ہے کہ 5 منٹ میں اسے ہم وائنڈ اپ کریں, ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے ذرا تھوڑا سا سوئفٹ چلنا پڑے گا, رائٹ. چلے ہم اسے پڑھتے ہیں تاکہ, اچھا یہ جو آپ کے پاس نوٹس ہیں نا یہ سارے اسی چیز کے موجود ہیں, اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے انہیں جا کے ایک بار خود سے بھی گو تھرو کرنا ہے, اور اگر آپ اسے اپنا لیں گے نا انشاءاللہ سکسیس ان ورلڈلی لائف ایون از فار یو انشاءاللہ. اور نہ صرف اسے آپ اپنائیں بلکہ کوشش کریں کہ اسے ایز اے لائف سٹائل لے کر چلیں تاکہ نسلیں سنوریں, آپ کی شکل میں نسلیں سنور جائیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے روند دیا ہے, اور زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہیں. فلاں نے فلاں کو قتل کیا تھا تو جناب یہ, اور فرمایا پہلا انتقام جسے میں کل عدم میں ختم کر رہا ہوں وہ کون سا ہے, میرے اپنے خاندان کا ہے. ربیعہ بن الحارث کا دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا, اب میں معاف کرتا ہوں. دیکھیں یہ ہے بات, لیڈر اسے کہتے ہیں جو پہلے خود کر کے دکھائے. لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو آرام پہ صوفے پہ بیٹھ کے آرڈر جاری کر رہا ہو اور خود پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, اور جناب جو پیروکار ہے انہیں مروا رہا ہو. نہیں, لیڈر وہ جو خود میدان میں آتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام خود کر کے دکھایا کہ وہ جو قتل ہوا تھا میں نے معاف کیا, سارا کھاتا ختم ہو گیا. سود جس میں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے اب یہ ختم ہو گیا, سود بھی ختم, حالانکہ لینا تھا لیکن ختم, پہلے خود کر کے دکھایا. دیٹ از ریئل لیڈرشپ. خود کر کے دکھاؤ یار, آگے چلو. سینے پہ گولی کھانے کے لیے پہلے خود آگے تیار ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب آئے ہیں تو خود آگے ہیں, اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی زبردست, میں بڑا شوق ہوا پڑھ کے, حدیث کا مفہوم ہے. فرمایا کہ اس دن جب ہم پہ بڑا سخت حملہ تھا, جنگ کی کیفیت ہے, ہم بڑے بڑے جید صحابہ جو ہیں بڑے ہمت والے, فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں ہو جاتے تھے, اور سب سے شدید اگر کسی نے اس دن جنگ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ ہے لیڈرشپ کہ اپنے پیروکاروں کو بھی اپنے اندر چھپا رہا ہے, انہیں بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے اور خود آگے ہو رہا ہے. یہ ہے لیڈرشپ. یہ صوفوں والی لیڈرشپ بڑی بڑی اونچے لیول کی لیڈرشپ ہے. اگر ہمیں آج پتہ چلتا ہے یار یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے لیکن یہ قیامت تک کی باتیں ہیں جو میں بتائی گئی ہیں, اس سے بہتر آپ کو کوئی لائف سٹائل نہیں ملے گا. میں اس کا چیلنج دیتا ہوں آپ کو. لوگوں, اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا, اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے. ورثاء کا حقوق اللہ نے دے دیے, جا کے پڑھیں سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کس کا کتنا کتنا حق ہے. ہم مار دیں, ہم کہ ماشاء اللہ
وہ صوفی صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ جو ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، یہ تو تہجد گزار ہیں لیکن حق دے نہیں رہے، بہن کا حق مارا ہوا ہے. یہ پڑھ چکے ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا بھائی. جو حق حدیث کا مفہوم ہے جس نے ایک بالشت پر کسی کی ناحق زمین ہڑپ کر لی ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے فرمایا قیامت والے دن اسے زمینوں کا توق بنا کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. تو ہم تو ایکڑوں کے ایکڑ رگڑ جاتے ہیں کیونکہ ہماری بہن ہم سے پیار بڑا کرتی ہے. اسی سے ساری قربانیاں لینی ہیں ہم نے کیونکہ وہ بہن ہے نا بیچاری. سر ایک اور کوشچن ہے کہ جو وڈیرے لوگ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے تاکہ ہمیں زمین نہ دینی پڑے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے رج کے چھتر پڑیں گے، بڑے بڑے چھتر پہنے کیا سمجھ آ گیا نا حکم کیا. وہ یہ چھوٹی بات کی ہے میں نے، اس لیول کے جو چھتر ہونے ہیں اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو بندے کا جا کے تھانے میں ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. دوسروں کو چھتر پڑتے دیکھ کے بندہ توبہ کر لے، یا اللہ ایک کور ہی تھو کاٹ لا. اور ایک بار موقع ملا ایک بندے کی ماشاءاللہ اللہ رحم، اس کی چھترول ہوئی تھی اور اس نے تھوڑا سا نا اپنا ٹراؤزر اس طرح کر کے دکھایا تو اتنے سے ہی ٹھنڈ پڑ گئی کہ یہ جو آپ نے ریبن پہنا ہوا نا اس طرح کی نیلی سکن تھی اس کی، یہ چھتروں کی تاثیر تھی جو نظر آ رہی تھی. تو آپ سوچیں اگر دنیا میں یہ ہے تو اس لیول کے جو ہونے ہیں وہ تو حال ہی کوئی نہیں ہے. تو جو اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے انہوں نے بھی کٹ دی ہونی، اور جو اپنی بہن کو کہتے ہیں یہ میری بڑی لاڈلی بہن ہے تو میں نے انہوں نے بھی لمبیا پانا ہوتے ہیں. یاد ہے نا یہ صورتحال ہونی ہے. حساب کتاب اللہ نے لینا ہے. جو کہ اپنا نسب بدلے گا، برادری یعنی کہ آپ کی جو برادری ہے وہ نہیں آپ بدل سکتے کہ ہیں کوئی اور ہیں تو آپ بدلیں. کیوں بلا نہیں بدل سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم آن جو اللہ نے بنا دیا وہی رہیں، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اگر ایک موچی صاحب ہیں وہ کل کو رانا صاحب بن جاتے ہیں یا ورک صاحب میاں صاحب بن جاتے ہیں، یہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ اور بھائی عمل کرو اللہ کے نیک اعمال کر کے تم یہاں سے جاؤ، تم یہاں پہ اپنی بلے بلے کروانے آئے ہوئے ہو. فرمایا یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. جو اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ لعنت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. اور قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی ہے چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے. جو کوئی کسی کا ضامن بنے گا وہ تاوان ادا کرے گا. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے. خود پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو. پرنسپلز ہیں، یاد رکھیے گا. تحفے لیں، تحفے دیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے. یاد رکھیے گا. جائز ضروریات پوری اپنی کر سکتی ہے. شوہر نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، شوہر سے ہی لینے ہیں نا، وہ نہیں ہے اس کے پیسے لے کے اپنی جائز ضرورت پوری کر سکتی ہے. اہم ہی اڑا نہیں سکتی بلا وجہ. رائٹ. اور دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح سے ان پر تمہارے حقوق ہیں. اور بھائی عورتوں کے مردوں پہ حقوق ہے، مردوں کے عورتوں پہ. یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ وہ میری بیوی ہے اب میں جو کہوں گا اس نے ماننا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے حقوق ہیں، فورس نہیں کر سکتے. عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی یا بے حیائی کا نہ کریں. اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ. اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، معمولی جسمانی سزا کا مطلب یہ ہے جسم پہ کوئی نشان نہیں آنا چاہیے، ہڈی تک ضرر نہیں جانا چاہیے، بس وارننگ. اور اس کے بارے میں آتا ہے جیسے مسواک سے مارا جاتا ہے، اس جیسے آج کے دور میں سمجھ لیں کہ ٹوتھ برش سے مارنا. کیا مطلب؟ دس از جسٹ a symbolic punishment, this is not a real punishment. فیمیل کو نہیں مارا جا سکتا، اسلام اجازت نہیں دیتا. جب یہ کہہ دیا نا کہ ایسے مارو، کہ جیسے اس کے بارے میں آتا ہے اگر مارنا بھی ہے تو ایسے نہیں مار سکتے، پورے ہاتھ سے نہیں مار سکتے، بس ایسے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کہ وارن کر رہے ہیں enough is enough, now my limits are over, just you are warning them, you are not actually punishing them or teasing them. یہ ہے کانسیپٹ جو اسلام دے رہا ہے. عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی. چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پہ وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تابع کیا ہمارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے سارے حقوق بھی دیں گے، مال ان پہ خرچ کریں گے، انہیں آپ سب کچھ انہیں پرووائڈ کریں گے، یہ ان کا حق ہے. ان سے نہیں کہیں گے کہ تم بھی مجھے جناب مال دو، نہیں، فورس نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ انہیں کر سکتے ہیں، انہیں آپ اجازت دے سکتے ہیں، وہ جاب کر سکتی ہیں خاص باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے، وہ کاروبار کر سکتی ہیں، انٹرپرینیورشپ کر سکتی ہیں، آئیڈیاز لے کر آ سکتی ہیں، ساری چیزیں ان کے حقوق ہیں، وہ یہ چیزیں کر سکتی ہیں. فورس نہیں کر سکتے.
कि तुमने कमाना है, ये नहीं आप कर सकते, ये अल्लाह ताला ने आपके लिए मना कर दिया गया। और अब कंक्लूड हो रही है, आखिरी बात आ रही है, लोगों मेरी बात समझ लो, मैंने हक के तबलीग अदा कर दिया, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़े जाता हूं कि तुम कभी गुमराह ना होगे अगर इस पर कायम रहे। वो क्या थी भला? वो अल्लाह की किताब है। कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें, एक एक आयत समझ के पढ़ना शुरू करें, आपको पता चलेगा कितनी अजीम किताब है, कितना अजीम खजाना अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। हमने उसे अलमारियों की जीनत बनाया हुआ है, किसी खाते में नहीं गिना, ठीक है? उसे पढ़ना शुरू करें। फरमाया और हाँ देखो, दीनी मामलात में गुल्ब से बचना, कि तुमसे पहले लोग इन्हीं बातों की वजह से हलाक किए गए। गुल्ब होता है हद से बढ़ जाना। शैतान को इस बात की कोई तवक्का नहीं रह गई है कि अब इसकी इस शहर में इबादत की जाएगी, या पढ़ लीजिएगा, ये जन्नत में जाने का फार्मूला दिया गया है। नमाज पढ़ो, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त नमाज अदा करो, रमजान में महीने भर के रोजे रखो, अपने मालों की ज़कात खुश दिली के साथ दो, अपने अल्लाह के घर का हज करो, और अपने अहले अमर यानी के हुक्मरानों की अतात करो जो कि शरीयत के मुताबिक हुक्म दे रहे हैं। शरीयत के अगेंस्ट किसी की बात नहीं मानी जा सकती। फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ नमाज भी पढ़ें, आपको अल्लाह के साथ जोड़ती है। जब आप अल्लाह से डरते हैं तो फिर दूसरों के हक एवं नहीं आप मार सकते, आपको पता चल जाता है ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। मुजरम खुद जिम्मेदार होगा, बाप का बदला जो है बेटे से नहीं लिया जाएगा, बेटे के बदले में बाप नहीं पकड़ा जाएगा। जो यहाँ मौजूद हैं ये दूसरों को समझा दें, यानी कि आगे पहुँचा दें। हुक्म दे दिया कि ये अहकामात अपने तक नहीं रख दें, आगे पहुँचा दो, इसीलिए तो यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना यहाँ तक ना आते। और लोगों, तुमसे मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? ये है जो एंडिंग स्टेटमेंट है, क्या जवाब दोगे? जवाब दिया। और लोगों, तुमसे मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल किया, तुम क्या जवाब दोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम इस बात की शहादत देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत दीन पहुंचा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक के रसालत अदा फरमा दिया और हमारी खैर ख्वाही फरमाई। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ अंगुश्त शहादत उठाई, आसमान की जानब, और लोगों की जानब इशारा करते हुए 3 मरतबा इरशाद फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। ये है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है, जिसे वो कंप्लीट करके गए हैं। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसे पूरी तरह से समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।